اس کا فون کب سے بج رہا تھا؟ 2 دفعہ اس کی آنکھ ہی نہ کھلی تھی۔ موبائل اٹھا کر اوپر جگمگاتے وارد کا نمبر کو دیکھ کر اس نے ایک نظر اپنے پاس سوئی عادیہ کو دیکھا تھا، پھر فون کان سے لگاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم وارد، اب ٹھیک ہے نا؟ اتنی رات کو فون کر رہے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی محسوس کرتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، تم سناؤ عادیہ کیسی ہے؟ میں عادیہ کو بہت زیادہ مس کر رہا تھا، بس اس لیے تمہیں فون کیا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ تم اس کا خیال ٹھیک سے رکھ رہی ہو نا؟ دیکھو ستیلی بیٹی ہے، یہ سوچ کر میری بیٹی کو بالکل بھی۔ وارد آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ عادیہ میری بھی بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ برا سلوک کیوں کروں گی؟ وہ مجھے کتنی پیاری ہے یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میں آپ سے بھی زیادہ عادی سے محبت کرتی ہوں، میرے لیے عادیہ میری بیٹی ہے۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تھا تو پھر آپ نے عادیہ کو میرے ساتھ بھیجا ہی کیوں؟ وہ سچ میں اس کے لفظوں پر ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ عادیہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ عادیہ کے لیے اس طرح کے الفاظ اسے وارد کے منہ سے سننے کو ملیں گے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جانتا ہوں، میں اس لیے اسے تمہارے ساتھ بھیجا ہے۔ زینت میں ٹھیک نہیں ہوں، یہ تم بھی جانتی ہو۔ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے، ردا کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے اپنے پاس رکنے نہیں دے رہے تھے وارد۔ وہ جیسے پچھلی بات کا اثر بھول چکی تھی، ہر چیز چھوڑ کر وہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں کل گھر واپس آ رہا ہوں، ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، کل تک ڈسچارج ہو جاؤں گا، پھر شاید تم دونوں کے سہارے ہی رہوں گا۔ عورتیں مردوں کے سہاروں پر ہوتی ہیں، لیکن میری عورتیں اپنے مرد کو سنبھالیں گی۔ مشکل تو ہوگی تمہارے لیے۔ کیوں مشکل ہوگی وارد؟ میرے لیے آپ ہر حال میں میرے شوہر ہیں۔ آپ مجھے موقع تو دیں۔ آپ کو لگا کہ ردا آپ کا مجھ سے بہتر سنبھال سکتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، میں اس کے حقوق پر ڈاکہ ہرگز نہیں ڈالوں گی، لیکن آپ نے مجھے خود سے الگ کر کے گھر بھیج دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس وقت صرف آپ کو میری ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے۔ آپ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے، کیوں ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا، بالکل بھی اچھا نہیں کیا آپ نے۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ شکوہ بھی کرتی تو کس سے کرتی؟ وہی تو تھا اس کا سب کچھ، جس سے وہ محبت کر سکتی تھی، شکوے کر سکتی تھی، شکایتیں کر سکتی تھی، اسی کے ساتھ تو جڑے تھے اس کے سارے جذبات۔ کل واپس گھر آؤں گا تو تمہارے ہر شکوے ہر شکایت کا حساب دوں گا، فی الحال مجھ سے باتیں کرو، اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، ڈاکٹر نے مجھے ڈرپ لگائی تھی، اس کے بعد سونے سے منع کر دیا تھا، لیکن نیند کنٹرول نہیں ہو رہی تھی تو ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا، اب اس انجیکشن کے باعث آنکھ ہی نہیں لگ رہی میری۔ اور ردا کہاں ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، یقیناً اس وقت ردا کو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وہ بہت تھک گئی ہے زینت، اسے آرام کی ضرورت ہے، اور آپ کو میری ضرورت ہے۔ میں آ جاؤں؟ میں ابھی آ جاتی ہوں نا۔ اکا کے ساتھ باقی سب تو سو رہے ہیں، لیکن نادر اکا جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہوں گے۔ انہیں تو ویسے بھی سکون نہیں ہے جب سے آپ کو گولی لگی ہے، نہ تو وہ سکون سے خود بیٹھتے ہیں نہ کسی کو بیٹھنے دیتے ہیں، سارا دن پتہ نہیں کہاں غائب رہتے ہیں۔ آج بھی بڑے پا کہہ رہے تھے کہ نادر اکا کو اس گھر میں آپ کا گارڈ بنانے کا فیصلہ سب سے اچھا تھا۔ وہ گارڈ نہیں بلکہ کسی بھائی سے کم نہیں ہے۔ وہ اس نادر کے بارے میں بتانے لگی تو نادر کو گارڈ بنا کر اس نے خود خوش قسمت محسوس کیا تھا۔ اس نے خود نادر کو زبردستی گھر بھیجا تھا کیونکہ وہ شابیر کی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ نادر سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ ایک نادر اور دوسرا اس کا بھائی مجاور، ان دونوں کو تب تک سکون نہیں ملنا تھا جب تک والد صحیح سلامت گھر واپس نہیں آ جاتا۔ یہ بات وہ خود بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اچھا چھوڑو یہ باتیں، یہ بتاؤ کہ عادیہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کی توجہ دوسری طرف دلاتے ہوئے کہنے لگا تو وہ بھی مدھم سی آواز میں اسے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا جبکہ وہ اس کی ہر بات کا جواب دینے لگی تھی۔ اذان کب ہوئی تھی ان دونوں کو ہی خبر نہ ہوئی۔ خیال تو تب آیا جب اسے اپنے ساتھ ننھے منھے ہلتے جلتے وجود کو محسوس کیا تھا۔ میری ادو جاگ گئی، بھوک ہی لگی ہے میری گڑیا کو، آؤ آپ کو دودھ دیتے ہیں۔ وہ اس کے ننھے ننھے گال چومتے ہوئے بولی تو اس کی ہلکی سی کلکلاہٹ وارد کو دوسری طرف فون پر سنائی دی تھی۔ ویڈیو کال لگاؤ، مجھے دیکھنا ہے اسے۔ وہ فون ایک طرف رکھنے لگی تھی جب اسے وارد کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی وہ اس کی ویڈیو کال کو ایکسپٹ کرتی فون سامنے رکھنے لگی تھی۔ آپ بھی دیکھ لیجیے اپنی لاڈلی کو، ایسے تنگ کرتی ہے یہ اپنی ماما کو، میری کیوٹ سی گڑیا۔ وہ فون وہیں پر اس کے سامنے رکھتے ہوئے ادو کی دودھ کی بوتل بنانے لگی، جبکہ وارد تو آنکھیں چپکائے بنا اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کا معصوم ہلتا جلتا وجود اس وقت وارد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا تھا۔ گھر جا کر سب سے پہلے اسے اپنی باہوں میں بھرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حیرت ہو رہی تھی اسے زینت پر، وہ کتنے سخت الفاظ کیا تھا لیکن پھر بھی زینت اس کی دل جوئی کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کتنی پیاری باتیں تھی اس کی کہ وہ ہر حال میں سے قبول ہے، کوئی اس کے لیے کچھ بھی سوچے کچھ بھی کرے، وہ ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ اور یہ حقیقت ہی تو تھی کہ زینت جیسا ساتھی صرف کہیں نہیں ملنا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی بیکار میں، ساری رات کے لیے جگا دیا تمہیں، سو جاؤ، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، پھر بعد میں ادو کو سنبھالنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی اس وقت میرے شوہر کو میری زیادہ ضرورت ہے، جب تک ردا نہیں جاگتی میں آپ سے باتیں کروں گی، آپ کے لیے سونا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کتنے بجے تک آپ آ جائیں گے؟ میں خود آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ اور پھر سے باتوں میں مصروف ہونے لگی تھی۔ وارد سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے بس جگا کر رکھنا چاہتی ہے۔ وارد مسکرا کر اسے باتیں کرنے لگا تھا۔ کیسی تھی یہ لڑکی؟ کسی بات کا کوئی اثر نہیں لیتی تھی، بس ہر چیز سے بلند اس کی ذات رکھتی تھی۔ اس کے لیے اپنا آپ بھی اتنا اہم نہیں تھا جتنا وارد اس کے لیے اہم تھا۔ وہ اس کی خاطر اپنی عزت نفس کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی اور وہ اس سے محبت کا اور کیا ثبوت مانگتا۔
वो आहिस्ता आहिस्ता चलती ऊपर कमरे में आई थी। दरवाज़ा खोलते हुए इसने सामने बेड पर लेटे हुए वजूद को देखा था, जबकि इसके वजूद के कितना हिसार मजबूती से बनाए हुए कोई गैर नहीं बल्कि इसका शौहर था। 4 महीने पहले तक इनका रिश्ता इस मकाम पर था कि किसी दूसरे के बीच में आने की कोई चांसेस ही नहीं थे, लेकिन इस वक्त कोई और नहीं बल्कि इसकी बहन ही इन दोनों के बीच में आई हुई थी। इसके शौहर के सीने पर सर रखे वो गहरी नींद में सोई हुई थी। कब सोचा था इसने कि इसकी अपनी ही बहन इसको इस तरह से तकलीफ से दो चार करेगी। इसकी वो बहन जो ज़िंदगी का कोई भी काम करने से पहले इसे मशवरा लेती थी, जो ज़िंदगी में कुछ भी करने से पहले इसे इजाज़त तलब करती थी, वही बहन इसके शोर के सीने पर सर रख के गहरी नींद सो रही थी। वो आंखों में अंगारे परे से देख रही थी। ये तकलीफ बर्दाश्त से बाहर थी। वो इस दर्द को सह नहीं पा रही थी। आंखों में चिंगारियां हद से ज़्यादा चुभने लगी तो वो तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। जब अचानक किसी के कमरे से निकलने पर ना सिर्फ नूरम की आंख खुली थी बल्कि वो खौफ से बज़म में छुप गई थी। बज़म कोई था, वो आया था, कोई था, अभी कोई था यहाँ पर। बज़म मैं सच कह रही हूँ, अभी कोई था यहाँ पर, मेरा यकीन करें। वो उसके सीने में छुपती बुरी तरह से हड़बड़ाई हुई थी। बज़म इसे अपने करीब करता इसे हौसला देते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई नहीं था वहाँ पर, लेकिन वो ना तो कुछ सुनने को तैयार थी। नॉर्मल रिलैक्स में देखता हूँ, शायद वो खिड़की खुली रह गई होगी, वैसे पर्दा वगैरह हिले होंगे। तुम बेकार में इतना डर रही हो, मैं यहाँ साथ हूँ ना तुम्हारे, मेरे होते हुए यहाँ कोई नहीं आ सकता। इसे प्यार से समझाता बेड से उठते हुए कमरे की खिड़की बंद करता। दरवाजे को भी अंदर से लॉक लगा गया था। माँ बेगम के जाने के बाद इसने दरवाज़ा नहीं बंद नहीं किया था, ये इसकी गलती थी। जबकि कमरे के दरवाजे से बाहर तक इसने झांका था, हर तरफ खामोशी ही छाई हुई थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। वो नूरम की गलतफहमी थी या सच में कोई इनके कमरे में आया था, वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था, लेकिन वो मिराल से ऐसी उम्मीद कर सकता था। देखा, हर जगह चेक कर लिया मैंने, यहाँ कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे शौहर के। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, मेरे होते हुए कोई नहीं आ सकता तुम्हारे आसपास। जब तक मैं यहाँ हूँ किसी का साया भी तुम्हें नहीं छू सकता। जहाँ तक इस आदमी की बात है तो तुम फिक्र मत करो। बहुत जल्द इसकी लाश तुम्हारे पैरों में ना लाकर रखती तो कहना। इसे अपने सीने से छुपाता इसे अपने सीने में छुपाता इसके माथे को शिद्दत से चूमते हुए बोल रहा था, जबकि इसके सीने में खुद को महफूज महसूस करती हुए इसकी पनाहों में छुप सी गई थी। इसका नरम और नाजुक वजूद खुद में छुपाते हुए बरसम ने इसके कमर को ठीक से कवर किया था, जबकि अब वो खुद तब तक सोने का इरादा नहीं रखता था जब तक नूरम दोबारा गहरी नींद में ना उतर जाए। फाइनली आज भारत को वापस घर लेकर आ गया था। बहुत कोशिश के बावजूद इसकी बात मानने को तैयार ना हुआ था। वो 1 हफ्ता भी अस्पताल में रहने को तैयार नहीं था। ना जाने इसने ये 1.5 हफ्ता कैसे गुजार लिया था। अब इसकी बस हो चुकी थी। इसे मजीद 1 दिन और वहाँ रहने को तैयार नहीं था। सो आज आखिर से डिस्चार्ज मिल ही गया था और घर आते ही इसे सुकून मिल गया था। इसे दरवाजे से अंदर लाने से पहले ही बड़े अब्बा ने ना जाने कितने बकरे सदके में दे दिए थे, ताकि हर बुरी औलाद दरवाजे से बाहर ही रहे। यहाँ तक कि मस्जिद में शाम को गरीबों को खाना खिलाने का ऐलान भी कर दिया गया था। वालिद कितनी ही गलतियाँ कर ले, कितनी ही जिद कर ले, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि वालिद बड़े अब्बा का सबसे प्यारा पोता था। इसकी हर बात को वो आंख बंद करके मान लेते थे। बस इसकी एक ही जिद न मान कर उन्हें लगता था कि उन्होंने गलती की है। इसकी शादी इसकी पसंद की जगह करने के बजाय उन्होंने ज़बरदस्ती से रिदा के साथ बांधा था, जिससे ना तो रिदा खुश थी और ना ही वारिद। उन्होंने रिदा की ज़िंदगी भी बर्बाद की थी और वारिद की भी। और फिर वारिद की ज़िंदगी में आई दूसरी लड़की भी कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी ही पोती थी। और अब हालात कुछ ऐसे थे कि बड़े बाप बीच में फंस चुके थे। ना तो वो रिदा के लिए कुछ कर सकते थे और ना ही आशाई के लिए वो बुरा सोच सकते थे। रिदा वारिद के बच्चे की माँ थी तो आशाई भी अब इन्हें जान से ज़्यादा अजीज हो गई थी। वो बहुत परेशान थी ये सोचकर कि आगे क्या होगा। वारिद के लिए दोनों बीवियों के साथ इंसाफ करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो तो बहुत पहले ही ये बात कह चुका था कि वो दोनों के साथ नहीं रहना चाहता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जिन्नत के साथ रहना चाहता है। वो रिदा से हर तलक ख़त्म करना चाहता है, लेकिन रिदा से वो वादा कर चुके थे कि वो वाद की ज़िंदगी से कभी रिदा को जाने नहीं देंगे, बल्कि इसकी ज़िंदगी में आई हर दूसरी औरत को निकाल देंगे। और अब वो अपना वादा निभा नहीं पा रहे थे। ये बात सबके लिए किसी शौक से कम साबित नहीं हुई थी कि वारिद ने रिदा के कमरे में रहने का फैसला किया था, सीनत के कमरे में नहीं। जब से रिदा की डिलीवरी हुई थी वो भी नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थी। ऐसे में वारिद का ये फैसला कि वो रिदा वाले कमरे में रहेगा किसी के लिए परेशानी का सबब इसलिए नहीं था क्योंकि इसके कमरे से वारिद को बाहर लाना इनके लिए मुश्किल नहीं था, वरना सीढ़ियों वाला सिलसिला होता तो इनके लिए मुश्किल बन सकती थी। लेकिन फिर भी वो जीनत को छोड़कर रिदा के साथ रहने का फैसला कर चुका था। ये बात सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी क्योंकि वो जीनत के अलावा किसी दूसरी औरत का नाम भी बर्दाश्त नहीं करता था। माँ बेगम और आमना बेगम दोनों ही इस फैसले पर पहले तो परेशान हुई थी, लेकिन फिर इसकी मर्जी जानकर इसे रिदा वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि पिछले दिनों रिदा की बढ़ती हुई बदतमीजियों की वजह से इसके इस फैसले से कोई भी ज़्यादा खुश नहीं था। मजावट, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा कुछ हो सकता है। वारिद कभी भी जीनत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वारिद को रिदा के कमरे में छोड़कर वो सीधा बड़े अब्बा के कमरे में आया था और यहाँ आते ही इसने कह दिया था कि वो जीनत को नजरअंदाज कर रहा है और रिदा को अहमियत दे रहा है। और इस बात का इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। गुस्सा तो पिछले कुछ दिनों से इसे वैसे भी बात पर बहुत ज़्यादा आ रहा था, जो हर चीज़ में रिदा को आके जीनत को पीछे कर रहा था। यहाँ तक कि अपनी इस हालत की वजह से वो रिदा के किसी बददवा को करार दे रहा था। और तो और इसने ये भी कह दिया था कि इसने रिदा के साथ बहुत नाइंसाफियाँ की हैं और अब वो इसके साथ इंसाफ करना चाहता है। यही सारी बातें इसने कमरे में आकर बड़े अब्बा को बताई थी।
जिस पर वो इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बेशक वो रिदा के साथ इंसाफ करना चाहता है, वो या वक्ती तौर पर रिदा के हवाले से जज्बाती हो रहा है, लेकिन मुजावर वो जिन्हें से मोहब्बत करता है। नहीं बड़े अब्बा, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ मामलात बिगड़ रहे हैं। इसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात साफ नजर आ रही है कि वो सीनत को नजरअंदाज कर रहा है, और वो मैं अपनी बहन के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो रिदा के साथ पहले क्या सलूक करता रहा है क्या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जीनत से वो मोहब्बत करके इसे यहाँ लेकर आया था। मैं अपनी बहन के साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मुजावर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसे कोई मतलब नहीं था वारिद की दिमागी हालत इस वक्त कैसी है। इसे बस इस बात से फर्क पता था कि इसकी बहन खुश नहीं है। मुझे लग रहा है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। अब पानी सस के ऊपर जा रहा है। बड़े अब्बा, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप खुद वारिद को समझाएं कि अगर मैंने इसे अपनी ज़ुबान में समझाया ना, तो फिर आपको इसके पैरों के साथ हाथों का भी अफसोस मनाना पड़ेगा। इसके अल्फाज सख्त हैं। मुजावर, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। वो पहले ही अपनी बेबसी को लेकर किस तरह से महसूस कर रहा है तुम खुद जानते हो, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बड़े अब्बा ने एक दफ़ा फिर से समझाना चाहा था जब ये अरमान अंदर दाखिल हुआ। मैं जानता हूँ मुजावर, तुम जीनत के हवाले से परेशान हो, लेकिन भारत अक्का ठीक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें भी रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आओ छत पर चलते हैं, एक एक कप चाय का हो जाए। शाहवीर अक्का भी ऊपर ही हैं। यरमानी से अपने साथ आने का इशारा करते हुए बोला तो बड़े अब्बा ने भी इसे जाने का कहा था, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से वो गुस्से में था, बेहतर था कि यरमान ही से समझा सकता था, और वैसे भी यरमान ऐसी सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था। अभी वो इसे लेकर बाहर निकला ही था कि आसिर हाथों में लूडो लिए इनके कमरे में हाजिर थी। इसे देखते ही वो खुलकर मुस्कुरा दिए थे। आज मिस्टर क्लाइशी बुड्ढे बाहर बैठकर खेलते हैं। इनके मुस्कुराने पर वो फौरन इन्हें बाहर आने का इशारा करती बाहर निकल गई थी। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं, ये भी तो बताएं ना। आखिर तल्लक क्या है आपका अरताशा के साथ, जो इतने दावे से कह सकते हैं कि वो बच्चा अरताशा का नहीं है। पुलिस वाला इसे सर से पैर तक देखते हुए सवाल कर रहा था, जिस पर शाहिद अहमद खुलकर हंसा था। इसके सच के चाचा की औलाद हूँ मैं, और अरताशा के पहले खून का तल्लक है मेरा। अरताशा की कोई औलाद हुई ही नहीं। इसके सके चाचा की औलाद हूँ मैं, और अरताशा के साथ खून का तल्लक है मेरा। अरताशा की कोई औलाद हुई ही नहीं। अभी कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 7 महीने पहले कर लो, इसकी शादी रजिस्टर हुई है। इस शादी के साथ तो बच्चा इतनी जल्दी कैसे 1 साल का हो गया। कोई औलाद है ही नहीं अरताज की। और ये जो बच्चा मूसा है, ये सदाम का ही है। गवाही मैं खुद दे दूंगा। मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता अरताशा को। मूसा को सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की दौलत हथियाने के लिए इसने अपने पास रखा हुआ है। बेचारा ये शरीफ आदमी तो बेकार में फंस गया है। इसने अपने साथ बैठे वहीद को देखा था। हम कैसे मान लें कि आपके साथ अरताशा का खून का तल्लक है और आप सच बोल रहे हैं। इस बात का भी तो हमें सबूत चाहिए ना। देखिए, हम पहले भी इनके घर 2-3 बार जाकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी उठा चुके हैं। इनका कोई इनके पास कोई सबूत तो है नहीं इस बच्चे के हवाले से। ये इस बच्चे की कस्टडी भी इसीलिए चाहते हैं ताकि इन्हें पेंशन का पैसा मिल सके। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी मत बोलिए। मुझे पेंशन का पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरे भाई की औलाद है वो। ऐसे गैरों के साथ क्यों पले? आप बस मुझे पर एक एहसान कर दीजिए, मेरा भतीजा किसी भी तरह से मेरे हवाले करवा दीजिए। अरे, मेरी बीवी पर तशद्दुद किया है इसने, इस बात को मैंने दबा कर रखा। औरत का मामला है, बीच में नहीं लाते, लेकिन मेरी बीवी की हालत देखें आप। इसने रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ रही है। इसे तो बस बच्चे से मतलब है। अब अपने खून की औलाद कौन छोड़ता है? हमें हमारा बच्चा चाहिए और कुछ भी नहीं। वहीदी से देखते हुए कह रहा था, जबकि इंस्पेक्टर अभी परेशान हो गया था। ठीक है, आप अरताशा की शादी के कागजात निकलवाएं। इनके निकाह कब हुआ है, निकाह रजिस्टर कब हुआ है, हर चीज़ की डिटेल आप हमें फ्राहम करें, तभी हम इस केस पर किसी तरह का अमल करेंगे। हाँ हाँ, ये लीजिए, ये निकाह के असल कागजात हैं, जो तकरीबन 7-8 महीने पहले ही रजिस्टर हुए हैं। और अगर निकाह की असल तारीख देखी जाए तो ये निकाह तकरीबन 11 महीने पहले हुआ था। निकाह के बाद वो अपने किसी एक केस के चक्कर में अमेरिका में फंस गया था। वहाँ से इसकी वापसी 3 महीने के बाद हुई थी, और इसने वापस आकर अपना निकाह रजिस्टर करवाया था। इसने अपनी जेब से एक कागज़ निकालते हुए इंस्पेक्टर के सामने रखा। तो अब की दफ़ा इंस्पेक्टर भी गहरी सोच में पड़ गया था। क्या सच था, क्या झूठ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर ये असल निकाहनामा था तो फिर इन दोनों का 1 साल का बच्चा कैसे हो सकता था? जब से वारद घर वापस आया था, ज़ीनत इसके आगे पीछे ही लगी हुई थी। हालांकि वो तो पूरी तरह से आदिया में गुम था। इसे अपने साथ बेड पर लटाए वो न जाने इनसे कौन कौन सी बातें कर रहा था। जब रिदा भी वहीं आ गई थी, रिदा को देखते ही न जाने क्यों ज़ीनत को अजीब सी जलन का एहसास हुआ था। हालांकि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब हालात बदलने लगे थे, तो अंदर से कहीं जलन भी उठकर बाहर आने लगी थी। मैं कर लूंगी, तुम जाओ, मैं अपने शौहर के काम खुद कर सकती हूँ। तुम्हें यहाँ हमारे सर पर सवार रहने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं। वो वारद की बेडशीट को सीधा कर रही थी जब रिदा ने इसे टोका था। इसने रिदा की आवाज़ पर एक नज़र वारद को देखा था, जिसने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वो तो इस तरह से आदिया से बातों में गुम था जैसे इससे ज़्यादा अहम इसके लिए कुछ हो ही ना। और वैसे भी इतने दिनों के बाद आदिया से मिलकर इस वक्त आदिया से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं था। ये बात रिदा और जिन्हें दोनों ही जानती थी। इसने एक नज़र वारिद को देखा था, जो इसे बिल्कुल अनजान बना हुआ था, जबकि रिदा दूसरी दफ़ा कमरे से निकलने का इशारा करते
रिदा के दूसरी दफा कमरे से निकलने का इशारा करने पर वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई थी। इसके कमरे से निकलते ही वारद ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फिर रिदा की तरफ। अच्छा किया तुमने इसे भेज दिया, आओ हम बातें करते हैं। इसने रिदा को अपने करीब बैठने का इशारा किया तो रिदा ने उकताए हुए अंदाज में इसे देखा था। वो बातें भी करता था तो क्या कि वो सारी जिंदगी के लिए बाइज हो गया है, वो अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। वही सारी घिसी पिटी बातें सुन सुनकर अब वो उकता चुकी थी। जी जरूर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, पापा को फोन करना है, उन्हें बताना है कि आप घर आ गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी आप घर आए मैं इन्हें जरूर इत्तला करूं। वो फोन उठाती बहाना बनाते हुए कमरे से निकल गई थी, जबकि वारिस सुकून से आप भरकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर आदिया की तरफ मुतवज्जो हो गया। बाबा का गंदा बच्चा, आपको बाबा की याद नहीं आई? बाबा को भूल गए हो क्या? बाबा की आवाज नहीं पहचान रही? तो देखो बाबा की तरफ, मैं आपका बाबा हूँ, वारिस शाह नाम है मेरा। मैं आदिया वारिस शाह, मुझे आपका बाप होने का एहसास हासिल है। ज्यादा नखरे मत दिखाएं, इधर अपने पापा से बात करें जरा। इसने अद्दू को अपनी तरफ किया था, लेकिन वो ना जाने किस मूड में थी कि दोबारा से चेहरा फेर गई। ऐसा लग रहा था कि जिन्नत के साथ हुए सलूक का बदला वो इसे ले रही है। कम से कम वारद को तो ऐसा ही महसूस हो रहा था, क्योंकि आदिया तो बिल्कुल भी इसे मुंह नहीं लगा रही थी। वो नरमी से अपनी उंगली से इसका चेहरा अपनी तरफ करता तो वह दोबारा से चेहरा फेर लेती। अब यही हल रह गया था। इसने नरमी से इसे उठाकर अपने सीने में छुपाया था और फिर आहिस्ता से बेड से उठता कमरे में चहलकदमी करने लगा। इसकी बेटी ऐसे ही खुश रहती थी। आपका 9वां महीना शुरू हो चुका है मिसेस अखराज, आपको अब ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अपने शोहर को मारे कूटे, इन्हें बहुत सारा तंग करें, लेकिन टेंशन मत लें। डॉक्टर इसे इसकी रिपोर्ट्स बताते हुए खुश मिजाजी से बोली तो अखराज ने डॉक्टर को घूरा था, जो कुछ ही महीनों में इसकी बीवी के साथ जरूरत से ज्यादा ही क्याराना लगा चुकी थी। हाँ हाँ डॉक्टर, टेंशन वेंशन नहीं लेती मैं तो सिर्फ टेंशन देती हूँ, वो भी खूब सारी। वो मजे से बोली थी। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि अखराज का फोन सारा दिन ही बजता रहता था। वो इसकी नौकरी को ना चाहते हुए भी कबूल कर रही थी, तो ऐसे में अखराज भी इसके खूब नखरे उठा रहा था। इसकी छोटी से छोटी चीज एक सेकंड से पहले जवाब आता था। कभी इसे अपने बेबी के मूड के मुताबिक खाना खाना होता था, तो कभी इसे खूब सारी शॉपिंग करनी होती थी। अब कल रात तो हद ही हो गई थी। इसने अपने बच्चे के लिए एडवांस शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसमें सबसे कुछ लाने के बावजूद कमी रह गई थी। रात 1 बजे वैसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर गई थी, सिर्फ अपने बच्चे के लिए हैंगर्स लाने के लिए। आजकल इसका मूड ऐसा था कि डॉक्टर ने कहा था कि इसकी कोई भी बात टाली ना जाए। बस इसी बात पर वो वैसे ज्यादा ही फ्री हो गई थी। 9वां महीना जहां इनके बच्चे को इससे ज्यादा करीब कर रहा था, वहीं इसके लिए सेंसिटिवी सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही थी। इसका एक एक लम्हा बहुत नाजुक होने वाला था। ऐसे में अखराज ने पहले ही छुट्टियों की एप्लीकेशन दे दी थी, जो इसे यकीन था कि 2-3 दिनों में मंजूर हो जाएगी। वो अपने काम में बहुत ज्यादा ईमानदार और पुरजोश रहने वाला इंसान था। ऐसे में इसके लिए इसके सारे ही साथी छुट्टियां मंजूर करवाने में सिफारिशी बन गए थे, और तो और गारंटी भी दे रहे थे कि मजीद 2-3 दिन में इसकी छुट्टियां मंजूर कर दी जाएंगी। बस इससे पहले कोई मुसीबत ना आ जाए। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुई थी। भारत ने इसे कमरे में क्यों बुलाया था वो हरगिज नहीं जानती थी। दीदा भी वहीं मौजूद थी। इसने बस यही कहा था कि इसे अपनी दोनों बीवियों से अकेले में कोई जरूरी बात करनी है। रिदा ने मुलाजमा से कहा था कि जिन्नत को कमरे में बुला लिया रि- रिदा ने मुलाजमा से कहकर जिन्नत को कमरे में बुला लिया था। हालांकि जब से वो गई थी वापस कमरे में नहीं आई थी। रिदा ने बस बाहर निकल कर देखा था, वो किचन में थी और वारद के लिए परहेजी खाना बना रही थी। वारद इससे बात करे या ना करे, वारद इसे अहमियत दे या ना दे, इसके लिए वारद से अहम और कुछ भी नहीं था। इस बात का अंदाजा रिदा भी लगा सकती थी। वारद इसे इग्नोर कर रहा था, बल्कि इग्नोर भी क्या करना वो तो इसे बिल्कुल भी भूल सा गया था। लेकिन वो नहीं भूली थी, वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी और इस वक्त भी वो इन्हीं सभी चीजों में लगी हुई थी। जब भारत ने इन दोनों को कमरे में बुलाया, आओ जिन्नत, मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम दोनों को इसलिए तुम दोनों का यहाँ पर होना बहुत जरूरी था। इसने जिन्नत को सामने रिदा के पास ही बैठने का इशारा किया, तो वो रिद्धा के पास बैठने के बजाय भारत के पैरों वाली साइड पर आकर बैठ गई थी। मैंने आज डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने कहा है कि अगले 2 साल तक मेरा अपने पैरों पर खड़े होना नामुमकिन है। इसने जैसे इन दोनों के सर पर धमाका किया था। मैं जानता हूँ ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि तुम दोनों के लिए भी काफी परेशानी वाली है, क्योंकि मैं तो तुम दोनों पर ही डिपेंडेंट हूँ ना। आने वाले 2 सालों तक तुम दोनों ही मेरा सहारा हो। वो इन दोनों के चेहरों को देख रहा था, जैसे एक्सप्रेशन नोट कर रहा हो। क्या मतलब आप 2 साल तक अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकेंगे? मतलब 2 साल तक हम आपको संभालेंगे। रिदा के लिए तो झटका ही बहुत बड़ा था। कुछ नहीं होता भारत, आप घबराएं मत, ठीक हो जाएंगे आप। ये डॉक्टर कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले? इन्हें क्या पता कि आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है। अगर जिंदगी और मौत पर इनका इख्तियार नहीं है तो ये सारे भी मामला अल्लाह के हाथ है। आप परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप जिनेत ने नरमी से इसके हाथ पर हाथ रखा था। वो अपना हाथ इसके हाथ से निकाल गया था। मुझे कोई झूठी उम्मीदें नहीं चाहिए, और डॉक्टर ने मेरा मुकम्मल चेकअप करके यही कहा है कि आने वाले 3-4 साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने रिदा के साथ बहुत सारी नाइंसाफियाँ की हैं। मैंने इसे बीवी होने का हक नहीं दिया। अपनी मनमानियों में मैंने इतना आगे निकल गया कि एक औरत के दिल को दुखाता रहा। ना जाने कब इसके दिल से मेरे लिए बददुआ निकली होगी। देखो
देखो ज़ीनत, तुम्हारे साथ मेरा मोहब्बत का रिश्ता है, मैं इस रिश्ते को दिल से निभाया है, मैंने तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि रिदा के साथ मेरा तलक बहुत मज़बूत है और मैं इस तलक को निभाना चाहता हूँ। रिदा तुमसे पहले मेरी बीवी बनी, इसलिए इसका मुझ पर ज़्यादा हक है। मैंने एक फ़ैसला कर लिया कि मैंने एक फ़ैसला कर लिया था, लेकिन अब ये मेरी बीवी रहेगी, वो भी सारी ज़िंदगी के लिए। तो बेहतर होगा कि तुम अपना रवैया रिदा के साथ बेहतर कर लो, क्योंकि अब मैं रिदा के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। वो इसे देखते हुए बोला था, तो इसकी बात ज़ीनत को अजीब लगी थी। इसका रवैया कब रिदा के साथ बुरा था, ये तो वो जानती ही नहीं थी। मैं तुम दोनों के साथ इंसाफ़ करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज से अभी से तुम दोनों मेरी बीवियाँ हो और तुम दोनों मेरे लिए ख़ास हो। अब से तुम दोनों में इंसाफ़ करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मेरी ज़िम्मेदारियाँ भी तुम दोनों पर बराबर आयद होती हैं। एक दिन मेरी सारी ज़िम्मेदारियाँ रिदा सँभालेगी और एक दिन ज़ीनत, और मेरे किसी भी काम में बाहर का कोई भी इंसान शामिल नहीं होगा। मेरे पास मेरी शरीके हयात हैं, तो मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं। वो अपना फ़ैसला सुना रहा था, जबकि रिदा ये सोच-सोच कर परेशान हो रही थी कि सारी ज़िम्मेदारियों में सारी ही ज़िम्मेदारियाँ शामिल होती हैं। आज मैं यहाँ इस कमरे में रहूँगा, कल तुम्हारे कमरे में। और वो ज़ीनत को देखते हुए बोला, तो इसने सिर्फ़ हाँ में सर हिलाया था। डॉक्टर ने जो डाइट प्लान दिया है, इसे एक दिन तुम फॉलो करोगी और एक दिन रिदा। इसने जैसे रिदा पर एक और धमाका किया था, यानी कि अब इसे हट्टे-कट्टे इंसान को संभालने के बाद इसे खाना भी बनाना था। डॉक्टर ने जो डॉक्टर ने जो डाइट प्लान दी थी, इसके हिसाब से मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है। वो फौरन बोली थी, जिस पर रिदा ने सुकून का सांस लिया था। ठीक है, लेकिन कल से बेहतर होगा कि तुम भी अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस करो, इसने सख्ती से कहा था, जिस पर जीनत ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया था। अब तुम जा सकती हो, आज मैं रिदा के साथ हूँ। वैसे जाने का इशारा करते हुए बोला, तो जीनत खामोशी से उठ गई थी, जबकि इसके जाते ही रिदा ने दरवाजा बंद कर दिया था। आपके आराम का वक्त है, अब आप सो जाएं, मैं यहीं पर हूँ आपके पास। इससे पहले कि वो इसे दोबारा अपने पास बिठाकर वही किसी पुट्टी बातें करता, रिदा ने पहले ही इसे आराम करने का कह दिया था। बेईमान लड़ बेईमान लड़की, ये लो, हमने फिर से तुम्हें हरा दिया। बड़े अब्बा ने बड़े मजे से तीसरी दफा हराया, तो अब की दफा सिर मुंह बनाकर बैठ गई थी। बच्ची समझकर पागल बनाते हैं आप मुझे। चार चार पर मेरी गोटी कैसे उठवा सकते हैं? मैं नहीं मानती, मेरी यहाँ पर 5 पर थी, अब वो लड़ाई पर आती बेईमानी करने लगी थी। हाँ, हाँ, हम तो अंधे हैं, हमें कुछ नज़र ही नहीं आता ना। बड़े अब्बा भी फ़ौरन लड़ाई पर उतरे थे। भारत क्या घर वापस आया था, इनकी हर परेशानी दूर हो गई थी, और अब सिर्फ वो पहली इंसान थी जो इस घर में बड़े धड़ल्ले से इन्हें गलत कह देती थी। देखें बड़े अब्बा, एक तो आप बेईमानियाँ करते हैं, ऊपर से मुझे बातें सुनाते हैं। मैं अभी अपने शौहर को बुलाती हूँ, वो खुद आपको देख लेंगे। आपकी दफ़ा पानी सर के ऊपर से हुआ तो आसिर गुस्से से उठ खड़ी हुई थी। हाँ, तो तुम्हारा शौहर क्या करेगा? आकर मारेगा, हमें बुला कर लाओ, हम क्या डरते हैं इससे? उन्होंने सीढ़ियों से उतरते मुजावर गिरमानो शाबिर को देख लिया था, तभी ऊंची आवाज में बोले थे, चुप करने के लिए अच्छी बुड्ढे कहीं के खबरदार जो मेरे शौहर को चैलेंज किया, वो आपको ऐसी हजारों गेमों में यूं यूं हरा सकते हैं। यकीनन सिर भी जान चुके थे कि शाबिर इसके आसपास ही है, तभी मजीद फैलने लगी। हाँ, तो बुलाओ अपने शौहर को, इसे भी देख लेंगे कितने पानी में है, हमें कोई नहीं हरा सकता। और तुम तीनों गेमों से पिछली गेम बेईमानी से जीती हो। यहाँ से तुम्हारी सिर्फ एक गोटी गई थी, तुमने 3 आंखें कर दी, और जो तो हमने यहाँ 5 पर तुम्हारी गोटी घर से उठवाई थी, इसको भी तुमने ज़बरदस्ती घर में घुसवा दिया। अरे बच्ची समझकर माफ़ कर दिया तुम, तो सर पर ही चढ़ती जा रही हो। लड़ाई बढ़ने लगी थी, जबकि हसीन ने आपकी तरफ आँखों में नमी लाते हुए सीढ़ी से उतरते शाबिर को देखा था। आप यहाँ खड़े-खड़े मेरी बेइज़्ज़ती सुन रहे हैं? ये कलेशी बुड्ढे मेरी जीती हुई गेम को हरा रहे हैं। आइए नीचे आइए और मेरा बदला लें। वो तेज़ी से इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी, तो शाबिर ने इससे ज़्यादा तेज़ी दिखाते हुए सीढ़ियाँ तय की थी। चले जल्दी आएँ, बदला लें मेरा, दिखा दें इन कलेशी बुड्ढे को कि प्यार की ताकत क्या होती है। वो मज़ीद ड्रामेबाज़ियों पर उतरती हुई बोली, तो किचन से रूखा भी बाहर निकल आई थी। ओह हेलो, मेरे दादा को अकेले मत समझना, अगर तुम अपने शौहर को लेकर आई हो तो यहाँ अपने दादा के साथ नहीं खड़ी हो। रूखा ने बड़े अब्बा के कंधे पर अपना हाथ रखा, तो वो जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, सबके ड्रामे के बीच में अचानक ही सीना चौड़ा करके खड़े हो गए थे। अब तो पानी वाकई ही सर के ऊपर हो गया था। असीर मेरा चांद, तुम यहाँ रुको, इन कलाशी बुड्ढा साहब और उनके कलाशी बुड्ढे सबकी पोती को तो मैं देख लूंगा। वो अचानक ही मैदान में उतरा, तो रूखा ने सीढ़ियों पर अपना प्लेन कामयाब होने पर शाबिर के साथ खड़े मुस्कुराते हुए मुजावर को आंख दबाई थी, जिस पर वो अगले ही लम्हे दिल थामता वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया था। हम तुमसे हम तुमसे भी नहीं डरते लड़के। हाँ बता, जो तुमने इस बेईमान लड़की का साथ दिया, ये बेईमानी करके जीत रही है। बड़े बड़े शाबिर को समझाने की कोशिश की थी। हाँ, तो आप ना होने दे बेईमानी, छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो कोई भी आपके साथ बेईमानी करके चला जाए और आप अपने लिए आवाज ना उठा सकें। और वैसे भी उम्र देखें आप अपनी, इस उम्र में सूट करता है ये सब कुछ। अपने से आधी भी नहीं, बल्कि आधी से भी आधी उम्र की लड़की के साथ मुकाबला करना सूट करता है आपको? वो इनके सामने बैठते हुए बोला, जबकि रूखा तो बिल्कुल इसके साथ जुड़कर बैठ गई थी। देखें, आप अपनी बीवी को डिफेंड डिफाइन कर सकते हैं, मानती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप मेरे दादा को कुछ भी कहें और मैं बर्दाश्त कर लूँ। अगर हिम्मत है तो मुकाबला करें, बातें ना सुनाएं। रूखा ने उंगली दिखाकर कहा था, जिस पर बड़े अब्बा ने भी हाँ में सर हिलाया था। बड़े अब्बा आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके साथ, लड़ूंगी आपको। कोई
आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इसने हाथ शाबिर को देखते हुए कहा था, जिसने नाक से मक्खी उड़ाई थी। हाँ हाँ रूहा, हमें तुम पर पूरा यकीन है, खेल कर दिखाओ इसे, हम देखते हैं कि हमसे कैसे जीतता है। उन्होंने सारी गुटियां निकाल कर सामने रखी थी, जबकि शाबिर ने एक नजर आसिर को देखा, जो खुद भी इस खेल के लिए काफी ज्यादा परशोश लग रही थी। हाँ बिल्कुल, हमारे दादा को कोई नहीं हरा सकता। ये अरमान भी बड़े अब्बा के दूसरी तरफ आकर बैठ गया था, तो मुजावर न जाने क्या सोचकर शाबिर के कंधे पर हाथ रख गया। अब अगर मुकाबला आ ही गया तो मुकाबला पूरी तरह से करना था, लेकिन ये मुकाबला गलत तरफ जा रहा था। इन सब ने मिलकर शाबिर के साथ बड़े अब्बा का वक्त यादगार बनाना था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। शाबिर पर खेल को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था। वो सब लोग जितना जोश दिखा रहे थे, शाबिर इतना ही सुकून से इनकी चलती गोटी को ऐसे काट रहा था जैसे बस इसी काम के लिए तो बैठा हो यहाँ पर। ये आपने कैसे मार दी? यहाँ पर 3 है, हमारी कोई गोट नहीं कटती थी। रुखा ने फौरन बेईमानी शुरू कर दी थी। मुझे झूठ बोलना जानती हो ना, मुझे झूठ बोला तो बाल काट दूंगा, शाबिर से घुट कर कहा तो रुखा ने निचला होंठ फौरन बाहर निकाल लिया था। अरे यार, वो गलतफहमी का शिकार हो गई है, तू डांट क्यों रहा है इसको? रुहा की सदा पर मुजावर का दिल हिचकोले भरने लगा था। ओ मजनू की औलाद, यहाँ जंग छिल रही है, आशिकी मशूकी नहीं। और अगर तू मेरा पार्टनर है तो सुकून से मेरा पार्टनर बन। अगर सामने वाली टीम पर दिल लगी करनी है तो यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे लिए मेरा चांद ही काफी है। इसने असर के गीत अपना हिसार बनाते हुए अपने करीब किया था, जो खुद ही छोटे से खेल को जंग में तब्दील होने देकर परेशान हो रही थी। शाह साईं, हम दोनों ने आज अस्पताल जाना था ना? इसने बड़ी मासूमियत से याद करवाया था। आज 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी इनकी डॉक्टर के साथ। हाँ बिल्कुल, आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। हमें इन बच्चों वाले खेलों में बाद में लगाना, पहले जाकर हमारी बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। परियप्पा ने अपनी आखिरी गोट फौरन ही मैदान से हटा ली थी। जिस तरह वो इनकी गोट पर गोट काट रहा था, मुमकिन था थोड़ी ही देर में वो इन्हें हराकर साइड पर हो जाता। सिर के साथ तो फिर वो कह सकते थे कि चलो बच्ची है, इसका दिल रखने के लिए हार गए, लेकिन शाबिर पर तो सचमुच में ही इन्हें हराने के लिए ही बैठा हुआ था। वैसे तो आप हार गए हैं, मर्जी है आपकी, आप कबूल करेंगे या ना करें। चलो मेरा जान, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। और डरमी से सिर को लेकर उठा था, जबकि परियप्पा ने बिल्कुल इसी के अंदाज में इसकी नकल उतारी थी। शाबिर इसका पहला पोता था, जो इन्हें हराने के मंसूबे बनाता था और फिर इन पर अमल भी करता था। फिक्र ना करें बड़े अब्बा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप हार रहे थे। रूखा ने इनके कान में सरगोशी की तो वो इसे नजरअंदाज करने वाले अंदाज में अपने कमरे में चले गए थे, जबकि थोड़ी ही देर में बाहर से आती खिलखिलाहट और कैकू की आवाज पर वो अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाए थे। आज के दिन आज का दिन इनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत दिन था, जिसमें उन्होंने अपने पोते के साथ इतना सारा वक्त गुजारा था। वो नहाकर निकला तो नूरम भी बाहर जाने को तैयार थी। बस हम आपकी सारी चीज़ें रखती हैं, आप रेडी होकर आ जाएं। वो इसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें सामने रख रही थी, ताकि वो उसे बार बार न पुकारे। वह सुबह से इसे कमरे से नहीं निकलने दे रहा था। हर थोड़ी देर के बाद इसे कोई ना कोई काम याद आ जाता था। नूरम ने अब इसके सारे बहाने खत्म कर दिए थे, जबकि वो अपनी शर्ट पहनने के बजाय वहीं सोफे पर आराम से बैठ गया था। इसे मिराल की परेशानी हो रही थी। कल रात को मिराल के सामने इसका हाथ पकड़कर इसे ऊपर लेकर आया था। ना जाने मिराल ने क्या क्या सोचा होगा। फिलहाल अपनी शादी की बात इसके सामने नहीं लाना चाहती थी। हाँ चली जाना, बस ये पहले छोटा सा काम कर दो। इसने पीछे से हर बात वाली बात दोहराई तो अब नूरम को गुस्सा आने लगा था। बस तुम खुदा का वास्ता है, बस आप मुझे जाने दे। मिराल आप ही अकेली है, मेरी तबीयत वैसे ही खराब है और डॉक्टर ने सख्ती से टेंशन से दूर रहने का कहा था। नूरम बेचैनी से बेड पर बैठे बरसम की तरफ देख रही थी, जो मजे से मोबाइल पर कुछ कर रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाओ, कौन रोक रहा है? बस जाते जाते मेरा वॉलेट दे दो, दराज में पड़ा है। वो इतने आराम से बोला जैसे वाकई जाने दे रहा हो। वो इसके कपड़ों के साथ वॉलेट नहीं निकाल पाई थी। नूरम ने बेबसी से इसे देखा और दराज से वॉलेट निकाल कर इसके हाथ में थमाया। जैसे ही पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, बरसम ने इसे पीछे से खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया था। और एक काम, जाते जाते मुझे एक किस दे दो, ताकि दिल लगा रहे। वैसे भी अब तुम अपनी सोतना पहचान को प्यारी हो जाओगी, तो मुझे तो शाम तक तुमसे मिलना नसीब नहीं होगा। वैसे रात को जब तक मैं नहा कर आता हूँ, तब तक सो क्यों गई थी तुम? डर था कि कहीं मैं आकर बरसम बस की बाहों में बुरी तरह से मचली थी, लेकिन बरसम की कैद से निकलना आसान थोड़ी था। हाँ नूरम, वो इसके कान में सरगोशी करता है। इसकी गर्दन पर हल्की सी सांसें छोड़ता हुआ बोला था, इतना हसीन चेहरा है तुम्हारा, इस पर फिक्र की लकीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बरसम, मिराल बाहर में जाए तो मेरी हो, तुम्हारी हर फिक्र, तुम्हारी हर सोच पहले मेरे लिए होनी चाहिए। इसने उंगली से इसके माथे की शिकने हमार की और नरम से इसके गाल पर बोसा दिया था। आपको जरा भी एहसास नहीं कि वो अकेली हैं, बीमार हैं, और तुम यहाँ हो मेरे पास, बस यही काफी है। वैसे भी वो तुम्हारी कजन है, मेरी नहीं। और आपकी आपकी बीवी। वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। लब्बू ने जैसे इसका साथ नहीं दिया था, इसके अंदाज पर न जाने क्यों बज़म के लब्बू पर मुस्कुराहट आई थी। बज़म, आप मुझे जाना है। नूरम ने इसे अपना आप छुड़वाया और दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ी। खबरदार नूरम, दरवाजे से बाहर मत निकलना। अब की दफा इसकी आवाज में सख्ती थी। नूरम चाहने के बावजूद भी बाहर नहीं जा पा रही थी। वह इसके हुक्म की पाबंद नहीं थी और ना ही कभी बनना चाहती थी, लेकिन वो बना रहा था। मिराल के मामले में वो मजीद सख्त हो सकता था और वह ऐसा नहीं चाहती थी। प्लीज मुझे जाने दे, दिल घबरा रहा है। बस एक मिनट, कमीज तो देती जाओ मेरी, और हाँ इस पर परफ्यूम भी लगाओ। इस कमीज के बटन न जाने किस उल्लू के बटने लगाए हैं, वो मुझसे बंद नहीं होते, उल्टे हाथ की तरफ से है। वो भी करके जाओ जल्दी। चलो शाबाश, वापस आओ। इसकी बात सुनकर नूरम ने दांत पीसे और जल्दी जल्दी इसकी बातों पर अमल करने लगी थी। इसने कमीज पकड़कर अपने गले में डाली थी कि वो जल्दीबाजी में इसके करीब होती बटन बंद करने लगी। सब बहाने थे, वो जानती थी, वो इसे बाहर नहीं जाने देना चाहता था।
لیکن اس دفعہ اس نے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا تھا۔ ہو کیا میں جا رہی ہوں، وہ کہتی جیسے ہی جانے لگی بزم نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے بھاگ جاؤ گی اور میں تمہیں اجازت دوں گا؟ رات کو معاف کر دیا تھا یہ سوچ کر کہ میری معصوم بیوی تھک چکی ہے، لیکن اب ایک بھرپور نیند لے کر تم کافی فریش لگ رہی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنی باہوں میں لیتا اسے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ بزم میرالاپی، ارے باہر میں گئی تمہاری میرالاپی۔ اب کی دفعہ بزم نے غصے سے گھورا تھا۔ وہ بیمار ہیں بزم، انہیں ضرورت ہے میری۔ رات کو ان کے سامنے میں آپ کے ساتھ آئی تھی۔ میں بھی بیمار ہوں، دیکھو تمہارے پیار کا بہار چڑھا ہے مجھے، تمہارے عشق کا پاگل پن سوار ہے مجھ پر، تمہیں چھوئے بغیر دیکھے بغیر تمہاری خوشبو میں ڈوبے بغیر میرا دم گھٹتا ہے۔ اس نے نرمی سے نورم کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا تو وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ ان ہاتھوں کو تم میرال کے لیے لے کر جا رہی ہو جبکہ یہ میرے بال سنوارنے کے لیے بنے ہیں۔ بزم نورم کا سب جواب دینے لگا تھا۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ بزم کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایسا تو نہیں تھا، ایک کام اور رہ گیا تھا، بزم نے آہستہ سے کہا۔ اس کے کان میں جھک کر بولا، تمہارا دل، وہ تمہارے پاس چھوڑ دو، کیونکہ تم اسے ساتھ لے گئی تو میں یہاں مر جاؤں گا۔ او میرے خدا! نورم نے تنگ آ کر اس کے سینے پر تھپڑ مارا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ کیسا عجیب بے شرم آدمی تھا، اپنی ہی بیوی کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا۔ آپ سے زیادہ فلرٹ اور پاگل شوہر اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ہاں، اس دنیا میں تم جیسی بیوی بھی کوئی نہیں، میری معصوم سادہ اور صرف میری مائی دل جان۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتا اس کی پیشانی گال گردن کو جا بجا چومتا گیا۔ تم کہتی ہو تم جانا چاہتی ہو اور میں کہتا ہوں کہ تم ابھی یہیں رہو گی، لیکن تمہیں پتہ ہے تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے جسم پر لپٹا دوپٹہ اتارتے ہوئے بولا تو نورم کو اب کی اس کی باقیوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ مجھے بزم کی پناہوں سے باہر مت نکالنا۔ جھوٹ! وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے لگی تھی۔ بالکل سچ۔ بس اب میں نہیں رہوں گی، میں نہیں رکوں گی، میں نے آپ کے سارے کام کر دیے ہیں، ہٹے پیچھے مجھے جانا ہے۔ اچھا تو پھر جاؤ، وہ اسے ذات کر کے آیا تھا۔ نورم تیزی سے اس کی پناہوں سے اٹھ نہیں لگی تھی کہ وہ اسے واپس تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ ارادہ کینسل، مائی دل جان، جتنی تیزی یہاں سے بھاگنے میں دکھا رہی ہو اتنی ہی تھوڑی سی محبت میری پناہوں میں شو کرتی تو میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا، لیکن اب نہیں۔ اسے دوبارہ سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس پر سایہ فکن ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی وہ اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ بزم اس کے لبوں کو شدت سے چوم رہا تھا جیسے ان لمحوں کو اپنی روح میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ نورم نے آنکھیں بند کر لی تھی، سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھی، دل کی دھڑکن جیسے تیز مسوکی بن گئی تھی۔ بزم کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے بازو میں لیے اپنے لمس میں اپنی چاہت اڈھیل رہا تھا۔ یہ لب صرف میرے لیے ہیں نورم، وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا گیا تھا۔ نورم نے ہولے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر بزم کا لمس ایسا تھا جیسے نشے کا اثر۔ وہ بے بس سی پلکیں جھپکائے پڑی تھی۔ تم جا رہی تھی نا؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ تو یہ ہونٹ، یہ آنکھیں، یہ پلکیں، یہ سب تم ساتھ لے کر وہاں کیا کرو گی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کوئی اور تمہیں اس طرح سے پیار کر سکتا ہے جیسے میں؟ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ بزم پلیز، نورم نے سسکی لی۔ شرم و جھجک اس کے لہجے میں گل چکی تھی۔ پلیز کیا؟ ابھی تو تمہیں احساس بھی نہیں کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ تم بس اپنی کزن کی فکر میں لگی ہو اور میرا دل، وہ تو یہاں کمرے میں تڑپ رہا ہے۔ یہ غلط ہے بزم، میں نے سارے کام کیے ہیں، آپ کے نورم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ جس طرح اپنی بے باکیاں بھرا رہا تھا نورم سمجھ چکی تھی کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ محبت تو نہیں کی نا تم نے مجھ سے؟ محبت کبھی غلط نہیں ہوتی نورم، اور تم میری ہو، میری محبت ہو، تمہیں محسوس کرنا، تم سے قریب ہونا میرا حق ہے، اور تمہاری اس قسم سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہوں میں تم پر۔ وہ پھر سے جھکا اور اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا بولا، جب تک تم مجھے مکمل محسوس نہ ہو جاؤ تو میں کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہتا اپنا فیصلہ سنا چکا تھا جبکہ نورم اس کی پناہوں میں بے بس سی ہو گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اسے واش روم بھیجنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ مومرش کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا آج اسے چھوڑنے کا۔ باہر بارات آ چکا تھا لیکن مومرش کو تو رومانس سے فرصت ہی نہیں تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے بھیگے بالوں کو سنوارا اور کمرے سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی وہ مومرش کی پکڑ میں آ چکی تھی۔ وہ پورے دروازے کے آگے جن بن کر کھڑا تھا۔ جب اس کی شدتیں سہتے سہتے وہ اب بس اسے گھول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سچ میں جیسے اسے اپنے آگے بے بس کر دیا تھا، لیکن نہیں، وہ اتنی جلدی تو مومرش کو خود پر شیر نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ شیرنی تو وہ تھی، وہ اس نے رہنا تھا۔ ساری شرم و حیا اس کی شدتوں سے پاگل ہوتی دھڑکنوں کے شور کو ایک طرف رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مومرش دروازے سے ہٹو۔ نائرہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے بونے چڑھائے فل کانفیڈنس سے کھڑی تھی جیسے کوئی نازنین رانی، اور سامنے کھڑا اس کا شخص مجنوں شوہر۔ مومرش نے بازو پھیلائے اس دروازے کو مکمل بلاک کر رکھا تھا۔ دروازے سے ہٹ جاؤ، اتنے دن بعد بیوی ملی ہے اور وہ بھی ایسی جو بھاگنے کی فل پریکٹس میں ہے۔ نہ بابا نہ، تم یہیں رہو گی میرے پاس، ویسے بھی باہر کون سا مفت کی بریانی بٹ رہی ہے جو تم نے جا کر کھانی ہے؟ وہ مزے سے بولا تو نائرہ نے دانت پیسے، اتنی دیر ہو گئی ہے ہمارے کمرے میں، لوگ باہر کیا سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے یہ کمرے میں نہیں جاتی تھی اب نکل نہیں رہی، شوہر کیا آیا یہ تو کمرے میں ہی بند ہو گئی ہے، کیا سوچ رہے ہوں گے کہ شوہر بیوی سے محبت کر رہا ہے اور دل سے کر رہا ہے اور بیوی بس باہر جانے کی ضد میں اپنی شوہری
मोहब्बत को इग्नोर कर रही है। मोमरिश ने आंखें नीचाते हुए शरारत से कहा था, मुझे जाना है, अम्मी ने कहा था ज्यादा देर। नायरा ने धक्का देकर पीछे हटने की कोशिश की कि मोमरिश ने फौरन का हाथ पकड़ उसे घुमाकर अपनी बाहों में ले लिया। अम्मी ने नहीं कहा होगा कि शोर की मोहब्बत को इग्नोर करो, है ना? और वैसे भी डार्लिंग, इस घर में सब लड़के बड़ी तेजी पकड़े हुए हैं, हर किसी को बाप बनने का जुनून सवार है। मैं भी इस रेस में पीछे नहीं हरगिज नहीं रहना चाहता, और इसमें तुम्हें भी अपने शोहर का साथ देना होगा। वैसे भी सिर्फ शोहर नहीं, तुम्हारा हैंडसम लवर भी हूँ। इसने शौक से आंख मारी तो नायरा का चेहरा सुर्ख हो गया था, लेकिन जुबान कहाँ खामोश रहती। अस्तगफिरुल्लाह, गंदी बातें मत करो मोमरिश, तुम्हें अंदाजा है बाहर कितना शोर हो रहा होगा? घर वापस 12 तक का घर वापस आ गए हैं, तुम यहाँ कमरे में बंद हो। कम से कम मेरा ना सही अपने भाई का तो ख्याल करो। तुम्हें तो इन अजीबो गरीब बातों से भी फुर्सत नहीं मिलती। इधर चाची ने सुबह ही मुझे कह दिया था कि सारा दिन कमरे में मत घुसी रहना। उन्होंने भी बाहर शोर मचा रखा होगा। वो सर तपैर सुर्ख हो रही थी। इसकी बातों जोमैनी बाबा और जोमैनी बाबा निगाहों से, शोर तो यहाँ भी हो रहा है बेगम, दिल का धड़कनों का और तुम्हारी इन दिलकश आंखों का। वो इसकी बात नजरअंदाज करता फिर शरारती अंदाज में बोला था, पता है तुम जितनी जिद करती हो इतनी प्यारी लगती हो। एक बार तो दिल चाहा तुम्हें बाहों में लेकर वक्त रोक दूं, ताकि वक्त भी चल जाए, हसद में चल जाए ये वक्त भी मुझसे, जिस वक्त मेरा महबूब मेरी पनाहों में हो। वो मजलिस के करीब होता इसके लबों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा था। इसकी नीयतें बहुत खराब थी। वो जब से आया था वो इसे कमरे से निकलने ही नहीं दे रहा था। मोमरिश, तुम पागल हो चुके हो वाकई। नायरा हंसी रोकने की कोशिश में नाकाम रही थी। हाँ, हूँ मैं पागल तुम पर और तुम्हारे इन बिगड़े लबों पर। इसने धीरे से इसके होठों को छुआ था। ये लब बोलने के लिए नहीं है, बस चुप रहने के लिए बने हैं। मेरे लम्स में इसकी बेबाकियां बनने लगी थी। नायरा ने शर्मा का सर झुका रही, मोमरिश प्लीज जाने दो ना। नहीं जाने दूंगा, वो संजीदा हो गया था। पूरी दुनिया बाहर, पूरी दुनिया है, यहाँ सिर्फ हम। तुम मुझे छोड़कर इस दुनिया में कैसे जा सकती हो? मैं कहीं नहीं जा रही, बस थोड़ा बाहर जा रहती हूँ। नायरा ने नरमी से इसका सीना थामा था। मोमरिश ने आंखें तंग की। ओह, अब समझा, तुम्हें मुझसे नहीं बस मेरी ज्यादा मोहब्बत से डर लगता है। वह कहका लगाकर बोला था, ठीक है भाई जाना है, पहले मुझे एक परफेक्ट किस दो, ताकि भाई जाते हुए भी याद रहे शोर किसी कीमती चीज से महरूम रहा हो रहा है। इसके बाद नायरा ने घूर कर से देखा, वो शादी के पहले वाले बदले निकाल रहा था। नायरा ने आंखें घुमाई, लेकिन दिल में धड़कने कुछ और ही कहानी सुना रही थी। मोमर, डरटू कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं, जब बीवी इतनी हसीन हो तो शोहर का दीवाना होना बनता है। वो सचमुच में दीवाना होता है। इसके चेहरे को थामते हुए अपनी आंखें बंद कर गया था। इरादा इसके लम्ब से खुद को मोतबर करने का था। जब नायरा अभी आंखें बंद करते हुए इसके कंधे पर हाथ रख गई, जब अपना एक हाथ पीछे की तरफ ले जाते हुए इसने अपने ना आवाज दरवाजा भी खोल लिया था। उमर की लप आहिस्ता से इसके चेहरे से टकराई ही थी कि अचानक दरवाजा खुला और अगले ही में वो इसके क्या अच्छे साथ होती खिलखिलाती हुई बाहर भाग गई। नायरा की बच्ची, ये तुमने अच्छा नहीं किया, आना तो तुम्हें मेरे ही पास है ना। मैं भी देखता हूँ कब तक बचती हूँ। इसकी खिलखिलाहट पर मुस्कुराते हुए वो खुद भी कमरे से बाहर निकल गया था। अस्पताल का कमरा सादा मगर साफ सुथरा था। दीवारों पर नीले रंग की हल्की रोशनी, एक तरफ इलेक्ट्र अल्ट्रासाउंड मशीन और दरमियान में बिछा हुआ नरम सा बिस्तर, जहाँ सी लेटी हुई थी। इसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट और बहुत सारी उम्मीद थी, जबकि शावीर इसके हाथ को अपने हाथों में थामे जैसे इसके अंदर का हर खौफ चुपचाप समेट रहा था। डॉक्टर ने आहिस्ते से मशीन ऑन की थी और जल लगाकर प्रोब पेट पर रखा। कमरे में अचानक एक नरम सी धक 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 की आवाज सुनाई दी थी। असीर की आंखों में आंसू तैर गए और शाबिर का दिल जैसे एक लम्हे को थमसा गया था। ये इसने सवालिया नजर से डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर मुस्कुराई थी। जी, ये आपके बच्चे की पहली धड़कन है, बहुत मजबूत है माशाल्लाह। शाबिर ने बेख्तियार असीर का हाथ अपने होठों से लगाया था। अब लोग अपने इन खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय करें। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। डॉक्टर मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो दोनों अब तक इस समय से लम्हे के हिसार में थे। मेरा चांद, ये हमारी मोहब्बत की आवाज़ है। असी ने आंखें बंद करके मुस्कुराहट छुपाई, मगर आंसू उसकी पलकों से झलक पड़े थे। शाह साईं, ये सब होप जैसा है, ये होप नहीं, हकीकत है। बेतहाशा खूबसूरत हकीकत, तुम्हारी कोख में जो जिंदगी पड़ रही है वो मेरा फखर है, मेरी दुनिया। शाहवी ने आहिस्ता से इसका चेहरा थाम कर कहा तो वो बेख्तियार इसके सीने पर अपना सर रख गई थी। शाह साईं, ये बेबी किस पर जाएगा? ये बच्चा अगर आप सा हुआ तो सख्त दिल होगा, और अगर मेरे जैसा हुआ तो जिद्दी। असीर ने हंसते हुए कहा तो शाबिर भी हंस दिया था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वो पत्थर की तरह सख्त था तो असीर अपनी जिद की पक्की थी। हाँ बिल्कुल, वो सख्त भी होगा और जिद्दी भी, बस दुआ है प्यारा तुम्हारा और हौसला मेरा लेकर आए। और चेहरा, असीर ने बेसाख्ता सवाल किया। मेरा चांद जैसा हो तो चलेगा, वो नरमी से इसका माथा चूमते हुए बोला था तो असीर की खिलाई थी, जिसकी इसकी खिलखिलाहटों के साथ वो दिलकशी से मुस्कुराता इसे अपने सीने में छुपा गया था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। आशी अखराज के कंधे से लगी बैठी थी। दोनों की तवज्जो सामने चलते टीवी पर थी, जबकि आशी की उंगलियां लाशौरी तौर पर अखराज के हाथों की लकीरों से खेल रही थी। अचानक बीच रात इसके फोन की घंटी बजी। अखराज चौंका, फोन फौरन सीधा हुआ और फोन उठाया। यस सर। आवाज में वही आ ही नहीं सकती थी जो इसके पति का हादसा थी। आशी ने घबराकर इसकी तरफ देखा। क्या हुआ? अखराज ने फोन रखते ही पैर छोड़ा, जूते उठाए। मुझे अभी जाना है आशी, एक अर्जेंट कॉल है। कहाँ इस वक्त? आशी की आवाज लड़स गई। प्लीज आशु, प्लीज परेशान मत होना, बस एक छोटा सा काम है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बस के माथे पर हल्का सा बोसा देकर निकला था, लेकिन जाने से पहले एक लम्हे के लिए पलटा, जैसे कुछ कहना चाहता हूँ, फिर सिर्फ मुस्कुरा दिया था। ख्याल रखना तुम अपना और मेरी बेटी का भी। वो इस पर एक
नरम निगाह डालकर कमरे से निकल गया था, जबकि अपने पीछे आशी को बेचैन छोड़ गया था। वक्त गुजरता गया, घड़ी की सुइयां जैसे कैद हो रही थी। बारिश तेज से तेज तर होती जा रही थी। फोन बार बार चेक किया, लेकिन कोई राब्ता नहीं। अखराज का फोन बंद जा रहा था और यूनिट की तरफ से कोई इतला नहीं थी। आशी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। अल्लाह खैर करे। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई और बेचैनी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं बस ऐसे ही नहीं बैठ सकती। वो पेट थाम कर दरवाजा खोलती बाहर का रास्ता देखने लगी। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, लेकिन आशी की आंखों में सिर्फ एक तूफान था, अखराज का नाना। अखराज, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया? वो बरसती बारिश में दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई थी। इसके राको जान में एक खौफ सा समाया था। आंखें मसलसल बह रही थी, लेकिन आंखों से पानी और बारिश का फर्क मिट चुका था। कमरा अंधेरे में डूब रहा था। बस बस खिड़की से आती बिजली की चमक लम्हा भर को रोशनी देती। दीवार से टेक लगाई आशी की आंखें मसलसल दरवाजे पर जमी थी। जैसे अगले ही लम्हे वो खुलेगा और अखराज अंदर दाखिल होगा, मगर वो लम्हा कहीं घंटों से नहीं आया था। फोन बार बार चेक करने फोन बार बार चेक करने से अब उंगलियां थक चुकी थी, मगर दिल की उम्मीद अब भी कायम थी। यूनिट से कोई खबर नहीं आई थी। आशी की हालत देखते हुए इसने खुद ही इसे अपने यूनिट का नंबर दे दिया था, जहां वो कभी भी इसे रब्ता कर सकती थी। वो फोन उठाए ना उठाए, कोई और लाजमी उठाकर इसे बता देता था कि वो किस हाल में है या कहाँ है या कब तक आएगा। लेकिन आज तो कोई इतला नहीं थी, कोई सुराग नहीं था। इतना सकूत, आखिर कहाँ हो आप अखराज? वो आहिस्ते से बड़बड़ाई। इसका हाथ बेख्तियार अपने बड़े बड़े पेट पर गया था। हम दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं, हम दोनों आपका इंतजार करें, मैं और बेबी, और आप। जुमला दरमियान में ही रुक गया। आंखों से आंसू छलकने लगे थे। बारिश की आवाज़ तेज हो चुकी थी, जैसे कुदरत भी इसको खौफ को बांटने लगी हो। वो आहिस्ता से खड़ी हुई, कदमों में लड़खड़ाहट थी। नहीं, मैं यूं ही नहीं बैठ सकती, मैं यूं ही नहीं रो सकती। वो कमकुमाती आवाज़ में बोली, तेज कदमों से अलमारी की तरफ बढ़ी, चादर ओढ़ी और दरवाजे की तरफ चल थी। अगर कुछ हो गया तो, अगर वो कभी वापस ना आए तो, अगर अगर वो मेरे बगैर, अपनी बेटी के बगैर दुनिया से चले गए तो। वही डर एक दफा पीछे सर उठाने लगा था। इसके सारे अपने भी तो यूं ही इसे छोड़कर चले गए थे, और यही सोच इसे तोड़ रही थी। घबराहट जैसे दम घोट रही थी। दरवाजा खुला तो सामने तूफानी बारिश, हवा के झोंके जैसे इसके रुखसार पर तमाचे मार रहे हों। मगर आशी न रुकी, न डरी। आपको ढूंढना होगा, मुझे आपकी खबर लेनी होगी। यूनिट ज्यादा दूर नहीं था, मैं जा सकती हूँ अकेले। पर जज्बाती होती नंगे पाँव कामते जिस्म के साथ बाहर निकल आई थी। बारिश की बूंदें इसके चेहरे मौजूदा कदमों को भिगो रही थी। इसका दिल चाहा कि दरवाज़ा खटखटाकर मुलाज़िमा को बता दे, लेकिन वो इसे जाने नहीं देगी। और मुलाज़िमा का शौहर तो पहले ही यूनिट में वॉचमैन था, जो वहाँ नाइट ड्यूटी देता था। नहीं, वो मुलाज़िमा के साथ वक्त नहीं बर्बाद कर सकती थी। अगर इस दौरान अखराज को कुछ हो गया तो, इस डर के साथ, तो वो इस तरह जाने के बजाय बाहर निकल गई थी। इस वक्त इसकी हालत बहुत जज्बाती हो रही थी। इसकी तबीयत के पेश नज़र वही कर रही थी जो उसे ठीक लग रहा था। सड़क पर अंधेरा था, मगर इसके डर की रोशनी अब भी जल रही थी, सिर्फ अखराज के लिए। आशी, तुम्हें आगे जाना होगा, यूनिट दूर नहीं है, इतना करीब तो है, अभी पहुंच जाओगे। इसने खुद अपने आप को हौसला दिया था। अगर आपको कुछ हुआ ना अखराज, तो मैं नहीं रहूंगी। वो चीख पड़ी थी, लेकिन इस चीख का कोई जवाब नहीं आया, सिवाय गरजते बादलों के, जो जैसे इसके दुख पर मातम कर रहे थे। इतना खौफ कि दिल फट जाएगा, कुछ जैसे मर रही थी वो। इसके कदम सड़क पर दौड़ने लगे, तेज, बेकाबू, जुनूनी, जैसे जब इसे अपने पेट में एक झटका महसूस हुआ। वो चीखी थी, मगर इसने खुद को संभाला नहीं। पहले अखराज, आप। और वो अंधेरे में गुम हो गई, बरसती बारिश में सिर्फ अपने शोहर की उम्मीद लिए तन्हा। बारिश और शिद्दत से बरस रही थी, सड़कें वीरान थी, हर तरफ अंधेरा सन्नाटा था। आशी का जिस्म बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था। लबास इसके जिस्म से चिमट गया था और कदमों में लड़खड़ाहट बढ़ती जा रही थी। वो अपने पेट पर हाथ रखे आगे बढ़ रही थी। एक हाथ से दीवार, दरख्त या साइन बोर्ड का सहारा लेती थी, दूसरे हाथ से पेट को थामती, जैसे अपने बच्चे को तसल्ली दे रही हो। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। लेकिन इसका जिस्म थक चुका था। सांसें बेतरतीब और आंखों से आंसू बारिश में गुम हो रहे थे। हर लम्हा इसे लगता अखराज की आवाज आएगी, कोई गाड़ी रुकेगी और वो इसे बाहों में भर लेगा। मगर आसपास सिर्फ सन्नाटा था। क्या हुआ आप अखराज? कहाँ हो आप अखराज? मेरी माँ बनने की सबसे बड़ी घड़ी में आप कहाँ हो? अपनी बढ़ती हुई तकलीफ पर समझ चुकी थी कि अब वक्त खत्म हो चुका है। वो गलती कर बैठी थी, इसे यूं नहीं निकलना चाहिए था। वो दाने मार मार कर रो रही थी। अचानक एक तेज झटका, पेट में ठेस उठी। उफ, वो दर्द से दोहरी हो गई थी और एक से तेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। बारिश जैसे तेज होती जा रही थी, इसका चेहरा, इसके बाल, इसका पूरा वजूद जमीन से लिपट गया था। मुझे मदद चाहिए, कोई है? इसकी आवाज लड़ती टूटती जा रही थी। गाड़ियां दूर से गुजर रही थी, लेकिन कोई नहीं रुका। आशी का दिल कांप रहा था, अगर मैं यहाँ मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो, अगर मैं इसे खो दूं तो। एक खौफ दिल में सर उठाने लगा था, इसे जबकि वो अपने हवास खोने लगी थी। अखराज का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। जब वो घर में दाखिल हुआ, जितना जल्दी हो सके यूनिट से अपना काम निपटा कर वापस आया था। यहाँ तक कि वापसी पर इसने अपना रास्ता भी शॉर्टकट कर लिया था, मगर घर में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आशीष ने आवाज़ दी। इसे यकीन था वो जाग रही होगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो पाँव तेज करता हुआ बेडरूम की तरफ बढ़ा था। फिर किचन और बाकी तमाम कमरों में भी आवाज़ दी, लेकिन हर जगह वो खाली ही था। इसके अंदर एक गैर मामूली घबराहट थी, दिल में एक तफशीश सी, जो इसे सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। कहाँ जा सकती है वो? इसके दिमाग में हजारों सवालात थे, और वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ दौड़ने लगा।
सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा बंद था, इसे यकीन था वो वहाँ नहीं गई। इसके दिमाग में अजीब सा कुछ क्लिक हुआ। वो दरवाजे से बाहर की तरफ भागा था। इसकी आंखें मुसलसल दरख्तों के नीचे गलियों में हर जगह तलाश कर रही थी। आशी वो बार-बार इसका नाम पुकार रहा था, जैसे वह एक लम्हा ज़ाया कर रहा हो। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और उसकी नज़र कभी आसमान की तरफ, कभी नीचे ज़मीन की तरफ पड़ती। तुम कहाँ हो? इसने खौफ के आलम में कहा था, जैसे किसी ने इसकी रूह छीन ली हो। क्या कुछ हो गया है? वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकला। सड़क पर मिट्टी के छींटे और गंदे पानी के छिड़काव थे, मगर अखलास की आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, आशी का चेहरा। वो भागता हुआ अपने यूनिट के रास्ते की तरफ जा रहा था। आशी सिर्फ इसी तरफ जा सकती थी, यकीन था कि वह अंदर ही गई होगी। वो ऊंचे नीचे रास्तों पर भागे जा रहा था, जब चंद लम्हे बाद इसकी नजर दूर एक साए पर पड़ी थी। आशी, वो चिल्लाया और फौरन इसके पास दौड़ता हुआ पहुंचा था। आशी वो बेहाल से बेतहाशा तकलीफ में नजर आ रही थी। वो होशो हवास से बेगाना बेहोश होने के करीब थी। आशी वो घुटने के बल गिरकर इसके सामने आया, उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, जैसे इसे चूमना चाहता हो। इसका चेहरा गुलाब रंग से मखरूम हो चुका था, इसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। आप अखलास? आशी की आवाज़ बिल्कुल टूट चुकी थी और अखलास ने फौरन इसे अपने बाहों में थाम लिया। वो लरजते हुए तकलीफ से सिसक रही थी और राज का दिल टूट रहा था। इसकी आंखों में खौफ और बेचैनी की झलक थी। इसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया था। आशी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। वो आशी को उठाए वापस अपने घर की तरफ भागा था, क्योंकि जल्दबाजी में शिकारी साथ लाने का होश ही नहीं रहा था। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, ताकि वो आशी को लेकर अस्पताल पहुंचे। घर के अंदर दाखिल होते ही इसने फौरन अपनी तो कार की तरफ दौड़ते हुए आशी को अपने साथ बिठाया था और गाड़ी निकाली। वो दिल ही दिल में दिमाग कर रहा था कि आशी को कुछ भी ना हो। इसकी नज़र मुसलसल इसकी हालत पर थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से अस्पताल पहुंचे। गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। सड़क पर बारिश का पानी छिड़क रहा था और अखराज की नज़रें हमेशा आशी पर थी, जिसे वो एक लम्हा भी इसकी तकलीफ ना महसूस कर सके। प्लीज़ अखराज, आप ठीक हैं? आशी की आवाज़ एक हिचकी में बदल गई थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इसके जिस्म में दर्द की लहर चल रही थी। वो किसी तरह खुद को इसकी बाहों में मजबूती से थामे हुए थी। मर रहा हूँ मैं, आशी, वो चीखा। नहीं, कुछ नहीं कहोगी तुम, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है, बस यही कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। अखराज की आवाज़ में बेहद शिद्दत थी। वो इस समय अपनी बीवी को तकलीफ को अपने वो इस वक्त अपनी बीवी की तकलीफ को अपने दिल में महसूस कर रहा था। वो जानता था कि वो किस तकलीफ पर इसे तनहा नहीं छोड़ सकता। अस्पताल पहुंचते ही अखराज ने गाड़ी रोकी थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, उसके जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसने फौरन गाड़ी का दरवाजा खोला और आशी को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ने लगा। डॉक्टर और नर्सें फौरन इनकी तरफ दौड़ी थी और आशी को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। डॉक्टर, फौरन कुछ करें, वो मेरी बीवी, मेरा बच्चा, इससे कुछ ना हो। अखराज का दिल बेहद परेशान था, उसके हाथों से पसीने की बूंदें टूटकर गिर रही थी। डॉक्टर ने फौरन आशी का मायना शुरू कर दिया था और अखराज को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। अभी देखते हैं, हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप प्लीज बाहर जाकर बैठें। डॉक्टर के लहजे में इल्तिजा थी। वो बाहर निकलने पर मजबूर हो गया था। आशी की तकलीफ, इसकी चीखें इसके कदमों को बांध रही थी। अखराज बेहाल सा बाहर बैठा था, इसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। अस्पताल के इमरजेंसी रूम के बाहर अखराज बेचैनी से टहल रहा था। इसका दिल मसलसल धड़क रहा था। हर लम्हा वो दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे कोई खबर सुनने का मुंतजर हो, मगर वक्त गुजरता जा रहा था और उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। आशी, इसके दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था। आशी क्यों घर से निकली थी, क्यों खुद को तकलीफ पहुंचाई थी? इस वक्त वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आशी का ख्याल था। आशी की एक सोच सब कुछ खत्म कर देने के दर पर थी। वो आशी को इस खौफ से कैसे निकालता वो नहीं जानता था। वो बार बार खुद को ये तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ था। कुछ ही लम्हों के बाद डॉक्टर बाहर आई। इसकी आंखों में तशवीश थी। इसकी आंखों में तशवीश थी और अखराज की नज़र में घबराहट। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बीवी? अखराज ने सवाल किया। उसकी आवाज़ में बेचैनी छुपाना मुश्किल था। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से बताया, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी हालत इंतहाई नाजुक है। वो शदीद तकलीफ में और बच्चा भी खतरे में है। क्या? डॉक्टर, अखराज का दिल जैसे रुक सा गया था। तो मेरा बच्चा? इसकी आवाज़ लर्ज रही थी और वो कुछ ही लम्हों में खामोश हो गया। क्या वो बच्चा बच जाएगा? अखराज की आंखों में बेपनाह खौफ था। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त कम है, हमें फौरी तौर पर आपकी बीवी को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाना होगा। डॉक्टर ने सर हिलाकर जवाब दिया, नहीं नहीं, आप इसे कुछ नहीं होने देना। अखराज का दिल तेज से धड़क रहा था। वो बेख्तियार डॉक्टर के साथ दौड़ता हुआ ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा था। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के बाहर अखलास ने कदम रोके। इसकी नज़र रो रही थी और दिल में दुआओं की तेज आवाज़ थी, लेकिन इसकी आंखों में एक ऐसी मायूसी थी जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। आशी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वो धीरे से बोला। आशी बेहोश थी, जबकि डॉक्टर से सिचुएशन संभालना मुश्किल हो रहा था। अजीब दीवाना शौहर था जो आशी का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। सर प्लीज़, हमारे पास वक्त नहीं है, आप बाहर जाएं ताकि हम इनका ऑपरेशन करें। डॉक्टर का अंदाज इंतहाई इल्तिजा लिए हुए था कि वो अपने कामदे दिल के साथ भाई की तरफ कदम उठाने पर मजबूर हो गया था। रूहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तक तो तुम्हें रूम में चले जाना चाहिए था, काका ने एक नज़र से देखते हुए कहा था। यरमान और बज़म अभी भी घर वापस आए थे। यकीनन काका यरमान के लिए खाना लाने ही आई थी। इसके खाना लेने ही आई थी। इसके चेहरे से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसे किसकी सालगिरह याद है। अजीब बात है, सबने बारी बारी इसकी सालगिरह का दिन पूछा था, लेकिन सभी लोगों ही कमरों में जाकर सो चुके थे। 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, लेकिन मजाल थी जो किसी को इसकी सालगिरह याद हो। इसका दिल खराब होने लगा था। मुजावर तो अब तक घोड़े बेचकर सो चुका होगा।
اور ایسا لگ رہا تھا جیسے شابیر بھی سو چکا ہے. کیا کسی کو بھی اس کی سالگرہ یاد نہیں تھی؟ اس کا دل برا ہونے لگا تھا. غصے سے اٹھ کر اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے. رات کی خاموشی میں خاص سی خوشبو رچی ہوئی تھی. کمرے کی مدھم روشنی، گلاب کی پتیاں اور فیری لائٹس کی جگمگاہٹ، سب کچھ جیسے آج کی رات کو اور بھی خوبصورت بنانے پر تلا ہوا تھا. دیوار پر سافٹ گولڈن لیٹر سے لکھا ہوا تھا ہیپی برتھ ڈے روحا، اور درمیان میں میز پر سفید ریشمی چادر پر پڑا وہ چھوٹا سا باکس جیسے کوئی راز چھپائے بیٹھا تھا. جیسے ہی روحا اندر داخل ہوئی تھی قدم تھم گئے تھے. اس کی نظریں کمرے میں گھومتی گئی. ہر طرف محبت، چاہت اور خوبصورتی کی جھلک تھی. یہ سب وہ حیرت اور خوشی سے بولی تھی جب اسی لمحے سیاہ کرتا پہنے، سرمئی شال کندھوں پر ڈالے مجاور مسکراتا چہرہ لیا سامنے آیا تھا. مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک خاصی نرمی تھی. سالگرہ مبارک ہو میری ببر شیرنی. اس کی آواز میں جذبات کی وہ گہرائی تھی جو لفظوں میں نہیں سماتی تھی. یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم تب بھی مجھے مکمل دل سے قبول کرو گی جب میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا. روحا کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ مجاور نے اس کے سامنے آ کر آہستہ سے کہا تھا. روحا کی پلکیں بے یقینی سے لرزی. وہ تو صرف ایک مذاق تھا. کیا مجاور اس بات کو سیریس لیے بیٹھا تھا؟ جیسے دل چند لمحے دھڑکنا بھول گیا تھا. تو آج تمہاری سالگرہ پر میں وہی کر رہا ہوں. وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. اسے اس لمحے پر یقین نہیں آ رہا تھا جب مجاور آہستہ سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا. نہ کوئی غرور نہ باقی تھا، نہ شدت، صرف ایک نرم سچی محبت. ضد نہیں تھی. یہ ضد نہیں. یہ میری ضد نہیں، یہ میری خوشی ہے کہ تمہاری زندگی کے اس خاص دن پر میں تمہیں وہ سب دوں جس کا تم نے خواب دیکھا ہے. اس نے سفید باکس کھولا اور اندر سے خوبصورت چاندی کی پائل نکالی جس پر چھوٹے چھوٹے ہیرے چڑے ہوئے تھے اور درمیان میں چھوٹی چھوٹی چند لڑیاں تھیں. جب تم یہ پہنو گے یہ چھنکا کرے گی تو مجھے لگے گا کہ تمہاری ہنسی میرے آس پاس رقص کر رہی ہے. آج تمہاری سالگرہ ہے اور میری سب سے بڑی خوشی ہے کہ تمہارا چہرہ مسکرا رہا ہے. وہ آہستگی سے پائل اس کے قدموں میں باندھنے لگا تھا اور پھر نرمی سے اس کے دونوں پاؤں پر لب رکھ گئے. یہ لمحہ میرے لیے ایک تحفہ ہے کیونکہ آج میں نے تمہیں خوش پایا ہے اور اپنے دل کا سب سے خوبصورت احساس تمہارے قدموں میں رکھ دیا. تم چاہتی تھی نا کہ میں پوری دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کروں، تو سن لو مسز روحا مجاور شاہ، میرے لیے میری پوری دنیا تم ہی ہو. وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا. روحا کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں نمی تھی جو مجاور کو دیوانہ بنا دیتی تھی. اور تم بھی مجھ سے محبت کرو گی نا روحا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا. ہاں مجاور شاہ، مجھے تم سے محبت ہے. آج سے نہیں بلکہ نکاح کے اس دن سے محبت ہے جب تم سے یہ تلق جڑا تھا. تم نے آج میری سب سے بڑی خواہش پوری کی اور یہ سالگرہ میری زندگی کی سب سے حسین یاد بن گئی ہے. تم صرف میری محبت نہیں، تم میرے خوابوں کی وہ تعبیر ہو جو میں برسوں سے چاہ رہی تھی. وہ جھکی اور مجاور شاہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی. اور تم میری ضد ہو، میری کمزوری ہو، میری ہر خوشی کی وجہ ہو روحا. اس نے روحا کو باہوں میں بھر لیا تھا جیسے ساری دنیا کو سینے سے لگا دیا ہو. کمرے میں مدھم سا میوزک چلنے لگا. تیز ہوا تیرا ہونے لگا ہوں، جب سے ملا ہوں تیرا ہونے لگا ہوں. گانے کی دھن جیسے سرگوشی بن گئی تھی. ہر روشنی، ہر سانس، ہر لمس صرف محبت کی خوشبو سے مہک رہا تھا. روحا کی نظریں جھکی ہوئی تھی پر دل کی دھڑکنیں تو جیسے مجاور کی سانسوں کے ردم پر بندھی ہوئی تھی. کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کی نظریں روحا کے چہرے پر ٹھہری تھی. روحا، اس کی آواز سرگوشی سی تھی جیسے ہوا میں گنگناتی ہوئی دعا. کیا اب بھی نظریں جھکاؤ کی؟ وہ آہستگی سے اس کے قریب آیا اور قدموں کی چاپ بھی روحا کے دل کی آواز میں گم ہو گئی تھی. روحا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پلکیں اٹھائی اور وہیں سب کچھ رک گیا تھا. مجاور کی نگاہوں میں ایک تپش تھی، ایک دعویٰ، ایک مکمل حق. یہ نظریں میری ہیں، ان میں کوئی اور جھانکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ سرگوشی کرتا ہوا بولا. اس کے اتنے قریب ہو گیا تھا کہ روحا کو لگا جیسے وہ سانس لینا بھی بھول جائے گی. تمہارے لمس سے ڈر نہیں لگتا مجاور، بس خود سے لگتا ہے. روحا کی آواز کمکماتی تھی مگر الفاظ میں چھپی سچائی نے مجاور کے اندر ہلچل مچا دی تھی. خود سے ڈرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، کیونکہ اب تم صرف میری ہو، میری سانس، میری روشنی، میری راتوں کی جاگتی خواہش. اس نے نرمی سے اس کی تھوڑی تھامی اور روحا کی پلکیں جھک گئی، مگر اس بار شرم سے نہیں بلکہ مکمل سپردگی سے. لبوں کی وہ چھوٹی سی قربت دھڑکنوں کی تال سے جو جڑی تھی وہ کسی دستور کی محتاج نہ تھی. ان لمحوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ جھجک، بس مجاور کا لمس، روحا کی خاموشی اور ایک خاموش اعتراف. محبت اگر مجاور ہو تو پھر مجھے ہر قید میں رہنا منظور ہے. روحا نے سرگوشی کی. اور میں وہ قید ہوں جس میں ہر دن تمہیں اور بھی زیادہ خود میں باندھتا جاؤں گا. روحا کی پلکیں پھر سے آراز پر جھکی تھی مگر دل کی دھڑکنوں کو چپ نہ کرا سکا. مجاور کی انگلیاں اس کے چہرے کے نقش کو چھو رہی تھی جیسے برسوں کی تشنگی کو چھونا چاہتی ہوں. کب تک روکتی رہو گی خود کو؟ اس کی سانسیں روحا کے گالوں کو چھو رہی تھی. وہ لمحہ جیسے رک گیا ہو، نہ باقی ماضی تھا اور نہ ہی مستقبل، صرف وہ دو وجود تھے اور ان کے بیچ سلگتی ہوئی چاہت. اس کی محبت بڑی گفت پر روحا کا وجود لرزا تھا مگر اس بار پیچھے ہٹنے کے بجائے وہ خود اس کے قریب ہوئی تھی. جب تمہارے لمس میں میرا نام بسا ہے تو میں کس سے بچوں؟ اس کا جواب مجاور کے دل میں طوفان کی طرح گونجا تھا. روحا، اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور ایک لمحے میں اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے. ایک ایسا لمس جس میں تصدق
तकद्दस भी था और तपश भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका लम्स नीचे उतरा, आंखों की नमी को चूमता हुआ गालों पर रखता गर्दन के करीब आता गया और रूहा की सांसें जैसे रुकने लगी थी। कहा था ना मुझसे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। इसके लहजे में शिद्दत थी, दावा था और एक बेपनाह दीवान की। रूहा की उंगलियां खुद ब खुद मुजावर की कमीज को थाम गई थी। तो फिर कर तो फिर कैद कर लो मुझे इस लम्स, इस आंखों और इस चाहत में। रूहा ने जैसे खुद स्फूर्ति का ऐलान किया था। मुजावर ने लम्हा ज़ाया किए बगैर इसे अपने सीने से लगा लिया, इतने करीब के जैसे वो हमेशा से वहीं रहने के लिए बनी हो। इसके लबों की कुर्बत को वो पहली मुकम्मल तस्लीम शुदा महर इश्क जब हवा में तहलील हुई तो कमरे की खामोशी में सिर्फ इन दोनों के दिलों की धड़कनें बाकी रह गई थी। रात लंबी थी, मगर इस रात का हर लम्हा रूहा और मुजावर की रोश मोहब्बत की तबस से जगमगा रहा था। ना शर्म बाकी रही थी, ना खौफ, सिर्फ मोहब्बत बेहद, बेहिसाब और बेपनाह। वो आज जैसे इसे मुकम्मल पा गया था, इसे अपनी बाहों में भरकर इसके होश ठिकाने लगाने में तो जैसे वो पहले ही से माहिर था। हाँ, लेकिन ये इकरार की शब पहली थी, मोहब्बत से भरपूर जज्बात की पहली शब थी, जिसे वो अपनी मोहब्बत से हमकनार करना चाहता था। सुबह की नरम सी रोशनी कमरे की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रूहा ने आहिस्ता से आंखें खोली और मुजावर का वजूद अपने बिल्कुल करीब महसूस करके साख्त हो गई। वो सोया हुआ लग रहा था, मगर इसके बाजू अब भी रूहा के गिर्द लिपटे हुए थे, जैसे वो रात की शिद्दतों के बाद भी इसका साथ कायम रखना चाहता हो। रूहा ने हल्की सी हरकत की और अगले ही लम्हे मुजावर की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई थी। कहाँ जा रही हो? इसकी नींद बड़ी गहरी आवाज़ रूहा के दिल के धड़कनों को बेतरतीब कर गई थी। नमाज का वक्त हो रहा है, आशी ने इसके नमाज का वक्त हो रहा है। रूहा ने इसके कान के करीब सरगोशी की थी। मुजावर ने आंखें खोले बगैर इसकी पेशानी चूमी और फिर आहिस्तगी से इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। रूहा ने शर्म से नसें झुकाई और इसका हल्का सा धक्का देना चाहा। तुम बाज नहीं आओगे? नहीं, अब क्यों बाज आऊं? जाना, अब तो तुम मेरी हो, मुकम्मल मुकम्मल जिस्म रूह सब कुछ। मुजावर ने हंसते हुए इसके कान के करीब सरगोशी की थी। रूहा की पलकें भीग गई, खुशी से, मुकम्मल होने के एहसास से और इस जज्बे की गहराई से जो हर हद से आज़ाद था। बस एक वादा करो मुजावर, मुझसे हमेशा यूं ही मोहब्बत करोगे? वादा करो मुजावर कि बस मैं नहीं वादा करना मुजावर के बस में नहीं है और तुमसे मोहब्बत ना करना मेरे इश्क की शयान शान नहीं। मुजावर ने इसका चेहरा अपनी हथेलियों मुजावर ने इसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर कहा था, चलो फिर नमाज पढ़ते हैं। जिस खुदा ने हमें इतने करीब किया, इस खुदा का शुक्र बेहद ज़रूरी है। वो नरमी से इसका माथा चूमते हुए बोला तो रूहा इसके साथ ही उठी थी। इस वक्त आशी की हालत नाजुक थी और खरास का दिल बेहद परेशान। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अखरास बेचैन खड़ा था। इसका दिल एक अजीब कैफियत में था, जैसे वो खुद इस कमरे में मौजूद हो जहां वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहा हो। वो जोए वो कोई छोटा सा बच्चा ना था जो समझ ना पाता किस आशी की इसकी आशी इस वक्त जिंदगी और मौत में झूल रही है। वो दरवाजे के करीब खड़ा था और डॉक्टर के आने का शिद्दत से मंतजर था। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि अल्फाज वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए बार बार दोहरा रहा था, लेकिन इसका दिल डूब रहा था। ऑपरेशन हो गया। अखरास ने जैसे ही डॉक्टर को आते देखा फौरन सवाल किया। इसकी आवाज़ में इतनी बेचैनी थी कि डॉक्टर को फौरन अंदाजा हो गया कि इसकी हालत क्या होगी। ऑपरेशन कामयाब हो गया है, लेकिन आपकी बीवी की हालत अभी भी नाजुक है। अहम अखरास ने डॉक्टर के लबों से लफ्ज़ ऑपरेशन कामयाब रहा सुना तो जैसे इस दिल ने सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे डॉक्टर के चेहरे की संजीदगी ने इसके पैरों तले जमीन खींच ली थी। मगर डॉक्टर ने गहरी सांस ली। आशी की हालत अभी भी नाजुक है, बहुत ज्यादा खून बह चुका है, कमजोरी हद से ज्यादा है, हमें आइंदा चंद घंटों तक बहुत मोहतात रहना होगा। अखराज की आंखों में वही पुरानी बेबसी लौट आई, एक वर्दी वाला मर्द जिसके हाथों में सब कुछ था, लेकिन इस लम्हे वो अपनी बीवी की जिंदगी के लिए खाली हाथ खड़ा था। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अखराज की आवाज़ भारी हो चुकी थी। हाँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं। डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गई थी। अखराज कमरे में दाखिल हुआ तो आशी आंखें मूंदे ऑक्सीजन मास्क के नीचे मध्यम सांसें लेती दिखाई दी थी। इसके चेहरे पर कमजोरी की धुंध छाई हुई थी, होंठों की रंगत उड़ी हुई थी, हाथ अब भी ठंडे पड़े हुए थे। अखराज धीरे धीरे इसके करीब आया। इसने आशी का हाथ थामा, वही हाथ जो कुछ घंटे पहले बारिश में कांप रहा था, जो इसकी तलाश में बेहाल था। आशी मेरी आशू, हम वालदेन बन के। इसकी आंखें छलक पड़ी थी, जो जबकि आशी अब भी खामोश थी। तुम जल्दी से होश में आ जाओ आशी, हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को देखेंगे। मैं इसे अकेले इस दुनिया में वेलकम नहीं करूंगा। वो इसके चेहरे को देखता, इसके हाथों को अपने हाथों में लिए चूमता वहीं खामोश बैठा था। कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मिराल पलंग पर नीम दराज कमजोर सी हालत में बैठी थी। सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी और ना ही नूरम में इतनी हिम्मत थी कि वो खुद इसके पास आती, लेकिन वो इसे इस हालत में अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती थी। आखिर वो इसकी बहन थी। इसके चेहरे पर जर्दी और आंखों में थकन गहरी थी। इसे बेड पर बेहाल पड़े देखकर नूरम ने दरवाजा इससे बेड पर बेहाल पड़े देखकर नूरम ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी थी। आ जाओ, वह थकन ज़दा आवाज़ में बोलते नूरम अंदर दाखिल हुई। एक अजीब सी उलझन कि नूरम मासूम निगाहों से मिराल को देख रही थी। वो कुछ कह नहीं वाली थी कि मिराल की निगाहें इसके गले में चमकते बज़म के नाम वाले लॉकेट पर पड़ी। ये क्या है? मिराल की आवाज़ में सख्ती दर आई थी। नूरम हिचकिचाते हुए नसें चुरा गई। मैं बताने ही वाली थी, मैं और बज़म। क्या? मिराल की आवाज़ बुलंद हुई। वो पूरी ताकत से उठकर खड़ी हुई थी। तुमने मुझसे शादी छुपाई,
तुमने मेरे बज़म से शादी कर ली। आपी नूरम ने कुछ कहना चाहा मगर अकेले ही में मिराल का हाथ इसके गाल पर पड़ा था। तुम झूठी हो। मासूम शक्ल बनाकर मुझ पर सौतन बन गई। मेरी पीठ पीछे मेरे शोहर से निकाह कर लिया। तुम मेरी सौतन हो। तुम बहन नहीं नागन हो। वो नागन नागन हो। वो चीखी थी जबकि इसके थप्पड़ की शिद्दत ना सहते हुए इसने बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लिया था। नूरम की आंखों में आंसू भर आए। मैंने कुछ गलत नहीं किया मिराल आपी, मैंने बस वही किया जो किस्मत में लिखा था। आपके चले जाने के बाद मुझे बंद करो ये ड्रामे। मिराल चीखी थी। अरे मैंने तो तुम्हें अरे मैं तो तुम्हें मासूम समझती थी लेकिन तुम तो डायन निकली। वो गुस्से से इसके पास आती इसे फिर से थप्पड़ लगाने ही लगी थी कि अगले ही लम्हे दरवाजा जोर से खोलता बरसम अंदर दाखिल हुआ था। इसकी निगाह नूरम के आंसू और मिराल के मारे थप्पड़ सदा चेहरे पर पड़ी थी। मिराल इसकी आवाज में गरज थी। क्या किया है तुमने? वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ मिराल का बाजू पकड़ते झटके से इसे करीब खींच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी मेरी जिंदगी पर हाथ उठाने की? इसकी दहाड़ मिराल की दहाड़ से कहीं गुना तेज थी। मिराल को शक नहीं यकीन था कि इसकी आवाज बाहर तक गई थी। तभी तो वो इसके पीछे अंदर आया था। परसम ये आपकी जिंदगी कैसे हो गई? मैं आपकी बीवी हूँ। आपका बच्चा मेरे पेट में था। वो इसकी गरज पर कांपते हुए बोली तो बजम की आंखें खून की तरह शुरू हो गई थी। था मिराल बीबी, तुम इसे मार चुकी हो। तुमने भाग कर मेरी औलाद को खत्म कर दिया और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत में तुम्हें माफ कर दूं। तुम्हें इस काबल मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुम इस काबिल हो? मिराल का जिस्म कांपने लगा। आंखों से आंसू रवां थे। जब नुरमा के बड़ी ना जाने क्यों वो मिराल की ये हालत देख नहीं पा रही थी। बस करे बरसम, प्लीज प्लीज। वो इसे कंट्रोल करना चाहती थी लेकिन बरसम का गुस्सा किसी तूफान की तरह। ये वही औरत है जिसने तुम्हें अपनी स्वतंत्र बनाने से पहले मेरे बच्चे को मारा और अब तुम पर हाथ उठाया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सब इसने किया है। तुम अब भी इसके लिए आंसू बहा रही हो, इस औरत के लिए रो रही हो। तुम वो गुस्से से अब नुरम पर गिर जाता जबकि मिराल ने रोते हुए पीछे हटना चाहा लेकिन इसकी सांसें तेज हो चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस आपसे मोहब्बत करती थी। हम में कोई तीसरा ना आए इसलिए। मोहब्बत बसम तंसिया हंसा। जिस दिन तुमने मेरे बच्चे को मारा था इस दिन तुमने मेरा दिल भी दफना दिया था। तुम अब भी सिर्फ एक माजी हो और नूरम वो मेरा आज है, मेरा कल है, मेरी हर दुआ है कि मेरी है, मेरी बीवी, मेरी मोहब्बत। तुम जो 6 साल तक जो नहीं बन पाई वो फकत 4 महीनों में बन गई है नूरम, मेरी नूरम। वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोला तो मिराल के कदम पीछे की तरफ उठे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो अचानक चकराती जमीन पर गिरी थी। जहां नूरम चीखी थी वहीं बसम एक लम्हे के लिए हैरान हुआ था लेकिन अगले ही लम्हे वो कमरे से निकलने लगा। बरसम बरसम आपी ने आपने आप इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? उतारा कुछ तो करे। आप ही बेहोश। वो मिराल का सर अपनी गोद में रखे अजीब बौखलाई सी हालत में थी। जब वो उल्टे कदम वापस आता मिराल को एक झटके से उठाकर बेड पर फेंक गया था। ड्रामे हैं ये और कुछ भी नहीं। डॉक्टर को बुलाता हूँ मैं। सदा इन सब चीज़ों का असर लेने की जरूरत नहीं है। आखिरी दफा बता रहा हूँ तुम्हें नूरम, मेरे लिए इस औरत से कहीं ज्यादा तुम और मेरा बच्चा अजीज है। वो गुस्से से कहता कमरे से बाहर निकलने लगा तो नूरम ने बेयकीनी से देखा था कैसा जालिम इंसान था वो। लेकिन वो तो जालिम नहीं थी। वो परेशानी से इसके हाथ पैर सहलाने लगी लेकिन मिराल होशो हवास से बेगाना थी।